इशारों से अपने, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा नात पढ़ी गई है. Now I called Master Moise from the New Model High School to give a brief introduction for Dr. Zakir Hussain, former President of India. Assalamu alaikum. Honorable respected President, eminent personalities, all and of the dais, guests, parents, students, and all the people present here, a very warm warning to one and all. Today, on the eve of 46th death anniversary of the versatile personality of India, the third President of India, and also the first Muslim President of India, who was born in Begum Bazaar of Hyderabad, Dr. Zakir Hussain. We will focus on certain events in his life, such as his early life, political background, and many more. Dr. Zakir Hussain, the erstwhile President of India, was an educationalist, intellectual, and trending personality. He served as President of India from 1967 until his death in 1969.
He before served as a Vice President of India. He was also the co-founder of Jami Millia Islamia. He was awarded India's highest national honor, the Bharat Ratna, in 1963. Dr. Hussain was born in Hyderabad, Telangana, in a Pashtun family of Keshargi tribe. As soon as Hussain was born, his family migrated from Hyderabad to Khyamganj, where he grew up. The former Foreign Minister of India, Mr. Salman Khurshid, is the grandson of Dr. Zakir Hussain. Dr. Hussain's father, Fida Hussain Khan, died when he was just 10. His mother died when he was 14. Dr. Hussain was educated at Anglo-Muhammadan Oriental College, which is now called as Aligarh Muslim University, where he was a prominent student leader. He received his doctorate in economics from the University of Berlin in 1926. During early 1927, he engaged with India's struggle for freedom from British rule. During this period, he emerged as one of the most prominent educational thinker and practitioner of the modern India. His personal sacrifice and untiring effort to keep Jami Millia afloat in very adverse circumstances won his appreciation of even his arch political rivals such as Muhammad Ali Jinnah. Soon after India attained independence, he agreed to be the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University. Soon after completing his term as Vice Chancellor, he was nominated as the member of Upper House of Parliament in 1956. He served his motherland with true spirit and loyalty. Dr. Hussain, in his inaugural speech, said, "The whole India was his home and all its people were his family." With this, I want to come to the conclusion of my speech. Thank you. Jai Hind. Very well, Master Moi. You have done excellent job. Now I request President of the Dr. Zakir Hussain Memorial Committee, Mr. Sikandar Mashuggi Sahab, for the welcome speech. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. दाइश पर तशरीफ फरमा आले जनाब अलहाज मोहम्मद खलीफुर रहमान साहब, चेयरमैन न्यू मॉडल एजुकेशन सोसाइटी हैदराबाद, जनाब अलहाज अनवर मोहिउद्दीन साहब, कस्टम सुपरिटेंडेंट हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जनाब मोहम्मद तहसीन साहब, करस्पॉन्डेंट हैदराबाद महिला मंडल के आप चेयरमैन हैं, जनाब अलहाज आरिफ काजरी साहब और मोहतरमा मुमताज सुल्ताना साहिबा, जो एक शायर, एक जर्नलिस्ट हैं और टीवी पर उर्दू टीवी की रूह रवां हैं और उर्दू टीवी बगैर मोहतरमा मुमताज सुल्ताना के शायर नहीं होता, और जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, चेयरमैन 99 टीवी चैनल और चेयरमैन गैलेक्सी इंस्टीट्यूशंस, और डियर पेरेंट्स, बच्चों और डियर हजरात जो आज यहाँ पर आए हैं। सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी जो हैदराबाद के अंदर ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर अपने सोशल वर्क को हमेशा करती आई है और इंशाल्लाह करती रहेगी। आज का जो मौका है, हिंदुस्तान के मुस्लिम सादर सदर जमहूरिया मौलाना हजरत डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की बरसी का मौका है। एक्चुअल देखा जाए तो उनकी बरसी 3 मई को थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम दिल्ली जा नहीं सके, जिसकी वजह से, कुछ मसरूफियतों की वजह से इसी महीने में हमने कमेटी ने डिसाइड किया कि यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाए और स्कूल स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, गेस्ट्स को बुलाया जाए, तमाम दिगर समाज के और लोगों को बुलाया जाए। इंशाल्लाह कुछ लोग अभी आने में हैं, कुछ लोग आने वाले हैं और स्कूल के करस्पॉन्डेंट
ACP चारमीनार और ACP फलकनुमा साहब का भी फोन आया था मुझे, वो लोग भी आने वाले हैं, पुलिस से कुछ मसरूफियत है, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। तो बहरहाल आज डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हमारे सदर जमहूरिया थे, बेशतर लोगों को, बेशतर बच्चों को आज जो तालीम हासिल कर रहे हैं कॉलेज के बच्चे, उनको ये नहीं मालूम कि हमारे मुल्क के कितने मुस्लिम प्रेसिडेंट गुजरे हैं, कितने सेंट्रल मिनिस्टर गुजरे हैं और कितने दानिश्वर हजरात गुजरे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कोई छोटी शख्सियत नहीं थे, बल्कि बचपन से ही आला किरदार की एक शख्सियत के हामिल थे। और खुसूसन और बेहतरीन बात यह है कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के ओहदे तक पहुंचे और 2 साल इस मुल्क की सदारत की। उसके बाद 1969 को उनका इंतकाल हुआ और आज 46वीं बरसी जो इनकी मनाई जा रही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से उनको भरपूर खराज-ए-अक़ीदत पेश किया जाता है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहीं और के नहीं बल्कि हमारे हैदराबाद के एक सपूत थे। हैदराबाद में उनकी पैदाइश हुई और पुराने शहर की पैदाइश है, और पुराने शहर में बेगम बाजार की पैदाइश डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, तो दूर की पैदाइश नहीं, न्यू सिटी के आगे की पैदाइश नहीं, बल्कि पुराने शहर की पैदाइश थी। बेगम बाजार में मौलाना कायद आजम बहादुर यार जंग के घर के सामने आज भी अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की जो है ड्योरी है, हुकूमत से हम 12 नुमाइंदगी किए हैं, मनमोहन सिंह साहब से भी हमने नुमाइंदगी की थी, राजशेखर रेड्डी साहब को भी मैंने कहा, KCR साहब को भी, वैसे TRS का स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हूं मैं माइनॉरिटी सेल का, तो वैसे दूसरे भी मैं KCR साहब को, राजशेखर रेड्डी साहब को और हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब को हम लोग जो है यादाश्त पेश किए। और कई मरतबा तो ऐसा हुआ जब किरण कुमार साहब के पास में जाता तो बोलते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आ रहे हैं। अरे बोला साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, उनका चाहने वाला हो, उनकी हवेली हमारे हवाले कर दीजिए, हम वहां पर जो है तो अच्छे स्कूलों को लेकर, इंस्टीट्यूशन को लेकर वहां पे मुस्लिम बच्चों के लिए जो है कोई इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, उर्दू सिखाएंगे, किताबें वगैरह उनको देंगे और हमारे अपने खर्चे से जो है वहां पर कमेटी चलाएंगे। तो खैर बहरहाल ये तेलंगाना की गड़बड़ में हुआ नहीं, लेकिन कमेटी जद्दोजहद कर रही है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला के जरूर उस कोठी को हासिल किया जाए। जो कौमी हेरिटेज है, ये कौमी असासा है, और बेगम बाजार के उस इलाके के एरिया को हम डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग जिसके नाम से भी मौसूम करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत से नुमाइंदगी करके, बल्दिया से नुमाइंदगी करके। तो बहरहाल डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का ये जो मिशन, इसको के ताउन से, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की शिरकत से आज 9 साल से डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से अवार्ड का प्रोग्राम, कुकिंग क्लासेस, टेलरिंग सेंटर्स, HIV एड्स के ऊपर अवेयरनेस और जो दूसरे कई सोशल चीजें हैं जो हम मुस्लिम भाइयों के साथ, मुस्लिम बच्चों के साथ, दीगर कौम को भी हम बताते आए हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी का मकसद खासकर कि अपनी कौम को तालीम की तरफ राग़िब करना, और जो बेहतरीन स्कूल्स हैं, जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर इतने अच्छे स्कूल काम कर रहे हैं, स्कूल तो बहुत खुल गए हैं, लेकिन अच्छे स्कूलों का शुमार जो बहुत ही कम परसेंटेज में है। गली गली स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन स्कूल खुलने का कोई ऐसा मकसद नहीं कि वहां तालीम दी जा रही हो। अगर आप जाके उनका रिजल्ट देखें, उनका परसेंटेज देखें, तो वहां कुछ भी नहीं, बस झूठी तख्ती लिखी गई। हैदराबाद के अंदर एक 50 साल तारीख से हमारा न्यू मॉडल हाई स्कूल जो जनाब खलीलुर रहमान साहब के वालिद साहब जनाब मरहूम मकफूर इकबालुर रहमान साहब जिसकी बुनियाद डाले थे, आज 50 साल से वो स्कूल यहाँ पे चल रहा है। और एक बेहतरीन स्कूल जो इलाका शाहीन नगर में है तो शाहीन नहीं है, और ओएस इंटरनेशनल स्कूल में तारीफ करूंगा उस इलाके में, उस इलाके का बेहतरीन, बल्कि दिगर इलाकों में भी वो बेहतरीन स्कूल करार दिया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? वहां पे तालीम अच्छी दी जाती है, टीचर्स को ट्रेनिंग अच्छी दी जाती है, और स्टूडेंट्स के जहन को समझ के, मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी को समझ के, मौजूदा दौर की तमाम तर सलाहियतों को समझ के वहां पर और न्यू मॉडल स्कूल जैसे स्कूल में उन बच्चों को मौजूदा दौर के लिहाज से तालीम दी जाती है। तो जब जाके कहीं स्कूल बनता है और बच्चों का परसेंटेज पास होकर अच्छा आता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप बानी भी थे और वाइस चांसलर भी थे। तो तालीम को आपने एक ही बात कही, जब उन्होंने देश के जो है सदर जमहूरिया बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, एक ही मिशन की बात करी कि हिंदुस्तान के अंदर
ज्यादा पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं, no need for the more politics in our country. We need, if we want to get progress in our future career for all the nations, so first of all we have to get the education. जब कौन एजुकेशन हासिल करेगी तो पॉलिटिक्स को छोटे तरक्की की तरफ गामजन होगी. जब तरक्की की तरफ गामजन होगी तो मौजूदा दौर में जब जापान, अमेरिका और जो जर्मनी वाले जितनी टेक्नोलॉजी पे थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने ये कहा कि अगर हमारी कौम, खासकर मुस्लिम कौम तालीम हासिल करेगी तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान को, मुसलमान कौम तमाम कंट्रीज से आगे लेके चली जाएगी. सारी दुनिया में मुस्लिम कौम, जिस तरह जैसे अबुल कलाम साहब है, मिसाइल मैन है, पाकिस्तान के अंदर जो है अब्दुल कदीर खान साहब है, और बड़े बड़े दुनिया के जितने भी जो मशहूर दानिश्वर लोग हैं जिन्होंने टेक्निक हासिल की और टेक्नोलॉजिकल तौर पे कई मुल्कों को ताकतवर किया, कोई गैर कौम नहीं बल्कि मैं तमाम मुसलमान हूं. अभी थोड़े दिन पहले मैं हमारे खलीद साहब से डिस्कस किया कि स्कूलों में खलीद साहब इत्तेफाक करें इंशाल्लाह तबारक व तआला. वो चीज हम न्यू मॉडल हाई स्कूल, ओएस इंटरनेशनल स्कूल और दीगर स्कूलों में इंशाल्लाह डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी आने वाली नौजवान नस्ल को एसएससी के बाद और एसएससी से पहले उनको तमाम तक चीजें मालूम हो जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बच्चे को यह बताना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पज ही इज गोइंग टू स्कूल, किस मकसद के लिए वो स्कूल को जा रहा है, पहले बच्चे को मालूम होना. तो जब बच्चे को यह मालूम होता, अमेरिका के अंदर एक उसूल है, जब बच्चे का एडमिशन लिया जाता है तो वहां पर एक रूल है फॉर्म भरने के टाइम पे, वो पेरेंट्स से नहीं पूछते बल्कि बच्चे से पूछते फर्स्ट क्लास से कि तुम स्कूल क्यों आना चाहते हो. तो बच्चे समझदार रहते, लोग क्या बोलते, वहां पूरे एस्ट्रोनॉट्स के फोटो, साइंटिस्ट के फोटो, उनके फोटो, डॉक्टर इंजीनियर के फोटो लगे हुए रहते. तो बोले ये कौन है बताओ, बोलते डॉक्टर है. तो डॉक्टर कब बनते, तो उसका जहनी इम्तिहान लिया जाता है. तो बच्चा बोलता डॉक्टर जब मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, अच्छे मार्क्स से पास होगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा. वेरी गुड, बोले यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन. एक दूसरे बच्चे को बुलाते, बोले पढ़ने क्यों आ रहे, बोले नहीं मम्मी मारते, मेरे को घर को जाना है, घर में डर हो रहा, इस हिसाब से मम्मी जो है स्कूल में छोड़ देते, नहीं गए तो पापा मारते. तो दोस्त को बोलते इज नॉट एलिजिबल, इसको और नर्सरी में 1 साल पढ़ा गया. ये चीज है. तो हमारे स्कूलों में साथ ही साथ तालीम के एक चीज का राइट करना बहुत जरूरी है, जिसे खलीलुर रहमान साहब जो है इत्तेफाक करे, बात का मैं मशहूर हूँ. बहुत पुराना स्कूल है, बड़ा स्कूल है, और हालिया हैदराबाद में टॉप मोस्ट जो है जो बच्ची नंबरों से पास करके आई है. तो बच्ची के लिए न्यू मॉडल के लिए जोरदार तालीम से जो बच्ची का बहुत ही मेहनत से, बहुत ही उससे सर बैठते नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ऐशो आराम की मौजूद है. लेकिन उसके बावजूद भी अपनी तमाम तरह मुसीबत तो निकालकर बराबर साहब जो है मैं देखता हूँ बराबर स्टूडेंट्स के ऊपर तवज्जो देते हैं और बराबर टीचर को तलकीन करते हैं, बराबर टीचर को गाइड करते हैं और किस तरीके किस टेक्निक से पढ़ाना है वो बताते हैं. तो ऐसा ही होना चाहिए. तो मिसाल के तौर पर स्कूलों में अगर तालीम दी जा रही है तो किस तरीके की तालीम दी जानी चाहिए. देयर आर 3 मेथड टू एजुकेट द स्टूडेंट्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट एक तो ये कि किस मकसद के लिए स्टूडेंट स्कूल आ रहा है, उसको ये समझाना चाहिए, उसका मकसद पूछना चाहिए, उसका ब्रेन वॉश किया जाना चाहिए. दूसरी बात कि पढ़ने लिखने से इंसान क्या बनता है, किस किस्म की तरक्की कर सकता है और जिंदगी में कौन से तालीमी जेवर को पहनकर अपने आप को इस दुनिया की मंडी में मनवा सकता है. हाउ ही कैन एक्सपोज हिमसेल्फ इन द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. गेम कैसा करना. अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स है, आप लोग है, बच्चों को बातों पर क्या होता कि अगर मैं इंटर पास कर लिया, 10 पास कर लिया या कुछ भी कर लिया तो सऊदी अरब चले जाऊंगा या मेरे मामू कनाडा में वहां चले जाऊंगा या कुछ भी जॉब कर लूंगा या नेटवर्क मैकेनिक बन जाऊंगा या नेटवर्क जो वो बन जाऊंगा या ज्यादा ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाऊंगा. ये एक थिंकिंग है, ये निकालना चाहिए. इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीजें, जैसे कि कस्टम ऑफिसर सुप्रिंटेंडेंट अनवर साहब के लिए जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया जाए, जो हमें एनकरेज करते हैं. क्या बात है. और बहुत सी चीजें इस तरह आईपीएस है, आईएएस है, आईएफएस है. एक बच्चे से आईएफएस की मैं मीनिंग पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएफएस. सर आईपीएस तो बोलता हूँ, अब तो मैं भी बोलता हूँ, अरे वो क्या है, अरे डॉक्टर बोले तो अच्छा ठीक है भैया. आईएफएस क्या है, सीधी इंडियन फॉरेन सर्विस. इंडियन फॉरेन सर्विस बोले तो हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सटर्नल अफेयर की जो मिनिस्ट्री है, वो एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री के तहत दुनिया भर के अंदर जितने कंट्रीज है वहां पर हमारी एम्बेसी होती है.
जैसे कि अमेरिका में, दुनिया की जितने कंट्रियां, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, जितने भी कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, वो पूर्व में हमारा एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है वहां पे अम्बासडर तैनात किया जाता है। अम्बासडर के हाथ के नीचे तकरीबन 40 एम्बेसी के स्टाफ को वहां पर मुतयन किया जाता है हमारे देश के रिप्रेजेंटेशन और गवर्नमेंट के मामला डील करने के लिए। बच्चों को मालूम नहीं, सिर्फ एक ही बात ध्यान में बिठा दिए कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दो ही बात है। पढ़ने का मकसद दो ही बच्चे बयान कर रहे, क्या बोलते डॉक्टर इंजीनियर, अरे तो दूसरे चीजें कौन करना, आईएएस है, आईपीएस है और दूसरे चीजें। बानिस्बत हिंदुस्तान के अंदर आईपीएस बनने के लिए अच्छी तालीम की जरूरत है, अच्छे रैंक की जरूरत है। बजाय उसके सिर्फ एक ही जहन में चीज रखने पेरेंट्स भी कि हमारे में पैसा है, हमारे करोड़ों रुपए जायदाद है, 70-75 लाख रुपए देके बच्चे या बच्चे को डॉक्टर बना के छोड़ देंगे, इससे हल होने का कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में आखिर में ऐसा हो जाएगा, पेशेंट हम डॉक्टर ज्यादा हो जाएंगे और घरां कम इंजीनियर ज्यादा हो जाएंगे। इंजीनियर बनेगा क्या, मतलब सिविल इंजीनियर का तो मकसद ही बहुत होगा आज के इस पीरियड में। एक शरफू भाई रहते बाहर, उन्होंने पहले इंजीनियर के हाथ के नीचे जो बड़े थे, उन्होंने क्या करे, सीखते 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 नक्शा डालना सीख लेके घरा बना के कॉन्ट्रैक्ट में घरा बना लेना होगा। अब एक इंजीनियर साहब का इंटरव्यू देने जाते, बिल्डिंग का एडवर्टाइज आया, आगे बोले कि भाई बिल्डिंग बनाना इंजीनियर की जरूरत है। इंजीनियर साहब गए तो जो शरफू भाई बैठे हुए थे, इंजीनियर साहब क्या करे, उठा के 46 लाख रुपए का टारगेट दिए, सॉरी 76 लाख रुपए का टारगेट दिए। शरफू भाई बैठे हुए जब अरे तो बेकार बताएं, कहीं डिग्री अपनी सबसे बड़े इंजीनियर साहब, इससे अच्छा मैं 55 लाख में बना के देता हूँ। उठा के मैं बार्गेनिंग करके 50 लाख रुपए में दिया, उठा के शरफू को 45 लाख में बना के 5 लाख बचा लिया होगा। इंजीनियर साहब घर को चले गए, गाड़ी में बैठ के मार। नो वैल्यू ऑफ सिविल इंजीनियर की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है और आने वाले पीरियड में रहेंगी भी नहीं, बच्चे बना लेते जरा और अभी ऐसी। तो कुछ नए टेक्निकल जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, नेटवर्क इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है और जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशन के बारे में है और जो दूसरे टेक्निकल जितने भी नई नई दुनिया की जरूरतें बन रही हैं, जिसकी जरूरत हो हमको, ऐसे चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि मैं ये बना तो मेरा इतना डिमांड होता। अब आज के 1 लाख रुपए अगर कोई सऊदी अरब जाके कमा रहा तो मुस्तकिल में ये बच्चा पढ़ के ग्रेजुएशन करके पढ़ के निकल के टेक्निकल कोर्स करे तक वो वैल्यू 1 लाख की 10 लाख रुपए हो जाती। तो 10 लाख रुपए कमाना, तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, तो पेरेंट को सोचना ये चाहिए और स्कूल इंतजामिया को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। स्कूल इंतजामिया का फर्ज ये है कि जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ रही, अमेरिकी टेक्नोलॉजी वो कुछ भी नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ से चले गई, उनका हमारे पास आ गया। अब जितने जैसे बच्चे थे पूछ रहे किस लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्हें बोल रहा फोटो देख रहा हूँ, देख के बोल रहा मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहा हूँ। तो उस एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछ रहे क्या है, सब एस्ट्रोनॉट तो स्पेस में जाते वो करते, पूरे छानबीन रही थी, अच्छी बात है, चलो तुम इसमें दाखिला लो। अब वो हिसाब से इसको तालीम दे रहे, तो वही मंजिल में पहुंच रहा हूं। अब हमारे बच्चों को ना एस्ट्रोनॉट मालूम, ना मैकेनिकल मालूम, मैकेनिकल में कितने चीजें होती है मालूम, मेडिकल में कितने चीजें होती है मालूम है। खाली एक ही टारगेट रहता हूं, मैं कम से कम पढ़, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा तो डिग्री, उसके बाद कम से कम पढ़े तो इंटर, बस। बेशतर स्कूलों में अच्छी तालीम दी जा रही है, मैं मुशाहिदा भी किया हूं शहर के बड़े बड़े स्कूल में, लेकिन इंशाल्लाह तबारक अल्लाह डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से एक नया तरीका राइज किया जा रहा है। तरीका पुराने छे, प्रैक्टिकल नया उस पर इंशाल्लाह के एक घंटा ऐसा लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स है, उनका इंटरेस्ट मालूम किया जाएगा तब कि इन दिस फील्ड यू आर इंटरेस्टेड, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर और आपका एम क्या है। तो हर बच्चे में एक अपनी काबिलियत होती है, वो काबिलियत के हिसाब से 4 बच्चे बैठे, 4 बच्चियां बैठे। अब बच्चियों का इंटेंशन ये है कि मैं गायनाकोलॉजिस्ट बनूं, बच्चों का इंटरेस्ट ये है कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूं। मेरा एक भतीजा है कनाडा में है, वो बच्चा साहब पूरे जो महाराष्ट्र कुक्षिपट स्कूल का स्टूडेंट था, पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 आया बच्चा, आज से 6 साल पहले। तो कनाडा की जो है हुकूमत की तरफ से पूरा पेपर में छपा था उसके बारे में कनाडा में। तो कैनेडियन गवर्नमेंट उसको अपने पूरे खर्चे पे बुला के वहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की 2 साल मलेशिया में ट्रेनिंग दिला के वहां से कनाडा बुला के उसको जॉब पूरा काम सिखा के 15 लाख रुपए तनख्वाह देके उसको जॉब करा। गुडशिपट स्कूल का बच्चा है। फिर वो बच्चा कोई मुतमविल खानदान का भी नहीं है, खाली पढ़ू तो बच्चा था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जहाज की इंजीनियरिंग जो होती उसमें।
तो बाद बच्चों में जांच की इंजीनियरिंग करने का रहता, बाद के मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता, बाद में कुछ टेक्निकली तौर पर आता, बाद में टेलीकॉम में इंजीनियर बनने की सलाहियत होती, तो बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की सलाहियत होती। तो जिसकी जो सलाहियत है उसको नोट किया जाएगा, वो हिसाब से उसको जो उनके पेरेंट को लिख के दिया जाएगा कि आपके बच्चे में ये काबिलियत है, इसको इस फील्ड में एजुकेशन के साथ आगे बढ़ाइए। तो ये तरीका एक कामयाब तरीका है किसी स्टूडेंट की सलाहियतों को प्रमोट करके उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी के साथ कई स्कूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो अवार्ड का प्रोग्राम फरवरी में होता है, आज तो हम ज्यादा लोगों को बुलाए भी नहीं और ज्यादा इसका प्रचार भी मैं जो अखबार वगैरह में नहीं करा। मैं तहे दिल से जनाब शाकिर अहमद साहब के लिए जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया जाए। सरकार चेयरमैन बूस्टर मशीन हाई स्कूल जनाब शाकिर अहमद साहब हैदराबाद ही नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स है, अपने आप को पहले आप लोग ये सोचें कि हम क्यों तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारा मकसद तालीम का क्या है। तो बच्चियों से भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि आजकल जो हमारी बच्चियां हैं, मुस्लिम बेटियां हैं, बराबर तालीम को हासिल करने के लिए, बराबर तालीम के लिए जो है जद्दोजहद कर रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला उनको जद्दोजहद में कामयाब करेगा। और बनिस्बत लड़कों के लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा इंशाल्लाह तबारक तआला। थोड़े दिन के बाद मैं अभी कल ओएस इंटरनेशनल स्कूल में बात किया हूं कि इंशाल्लाह तबारक तआला कुछ ऐलानात भी हमको हमारी कमेटी की जानिब से यहाँ पे करना है। ओएस इंटरनेशनल स्कूल शाहीन नगर में इंशाल्लाह स्कूल चालू हो जाने के बाद कुकिंग क्लासेस का हम आगाज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये हो रही है कि हमारे कौम मिल्लत की बच्चियों को जो दौरान तालीम उनको घर गृहस्थी की ट्रेनिंग भी दी जाए। और ओएस इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल की बच्चियों को ही नहीं बल्कि दिगर बच्चियों को भी ये है कि जो गरीब बच्चियां रहेंगी, वॉटेवर जो भी हो हमारी कौम की बच्चियां रहेंगी, उनको इंशाल्लाह तबारक तआला फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुकिंग क्लासेस का आगाज किया जा रहा है वहां पे इंशाल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह तबारक तआला न्यू मॉडल हाई स्कूल, बूस्टर मशीन स्कूल और दिगर स्कूलों में इंशाल्लाह तबारक तआला कुकिंग क्लासेस का आगाज डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। आप तमाम हजरात इस बात को याद रखेंगे, इंशाल्लाह अखबार में भी आएगा। और बच्चों को जो है तालीम के साथ साथ घर गृहस्थी की भी तालीम इंशाल्लाह ताला वहां पर दी जाएगी। बहरहाल आज डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की याद का दिन है, खुशी की बात है, आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में स्कूलों में जो हम चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा तालीम हासिल करने के बाद जिस तरीके से रेमिडियल क्लासेस स्कूलों में चालू होती हैं, उसी तरीके से आधा घंटा बच्चों की नशोनुमा के लिए क्लासेस शुरू किए जाएं। वो इस किस्म की क्लासेस होनी चाहिए कि बच्चे मुस्तकबिल में क्या बनेंगे और दुनिया में कौन से कोर्सेस है, आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, आईएएस है और इंडियन फॉरेन सर्विस है और दीगर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है। एक बुक इंशाल्लाह ताला उसके बारे में बताई जाएगी, बच्चों को समझाया जाएगा कि दुनिया के अंदर कितने प्रोफेशंस है जो आप आला से आला तालीम हासिल करके उस प्रोफेशन को अपना सकते हैं। बैंक मैनेजर है, इज्जतदार पोस्ट है। अब जो बच्चे अभी बता रहा हूं मैं सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में पूरा घुमा हूं, देखा हूं कि जो बच्चे खासकर मुस्लिम बच्चे इंटर पास करके जो सऊदी अरब चले जाते, अरे क्या करना है डिग्री करके भाई बोलते, वो बच्चों को हम देखे सऊदी अरब के अंदर, वो लोग सिवाय कार धोने के, धूप में मेहनत करने के और गैर कौम के लोगों के हाथ के नीचे प्यून बनने के दूसरे कोई काम के नहीं है। लेकिन जो बच्चों में डिग्री है, इंग्लिश टॉकिंग का पावर है, राइटिंग पावर है, पेन पावर है, सलाहियत है, वो बच्चे जो है बेहतरीन पैमाने पे काम कर सकते हैं। दिलचस्पी से ना, ऐसा नहीं। मैं हिसाब पे रियाद सऊदी अरब में एक जगह बहुत बड़ी कंपनी में मैं मार्केटिंग मैनेजर था, तो वहां पे तलाक कटे का एक बच्चा है, एमबीए में। एमबीए के दो मतलब हैं, एक मतलब मालूम है, दूसरा मतलब मैं बोलता हूं, मेंबर ऑफ बेकार एसोसिएशन, एमबीए द मेंबर ऑफ बेकार एसोसिएशन। तो ये एमबीए करे तो बच्चे बहुत है वहां पे, खाली पैसे देके चीटिंग मार के पास हो जाना। मेरे पास आए, आके बोले सर, बोला यस मैं हैदराबाद से हूँ, बोला बोलिए, तो साहब मेरे को जॉब होना है, बोला अच्छी बात है आइए बैठिए, हालांकि मैं एमबीए नहीं हूँ। तो बोला क्या काबिलियत है आपकी, तो मैं एमबीए हूँ सर। तो कंपनी का क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, आप वाले मौका दो, ये टू जेड कर दो तो मुझे। अरे बोला ए टू जेड करेंगे भाई, मेरी कर लेंगे, नौकरी चलेगी, क्या काम में क्या करते, बोलते ठीक है साहब ऐसा करता हूँ। तो जिद्दा में प्रोजेक्ट था, मैं सुबह जिद्दा से आया था, तो बोला जिद्दा में चीज ऐसा है, इसको कैसा करना, तो आप गाइड करो, कर देता हूँ सर। बोले तुम क्या पढ़े थे,
MBA मैं हूं, तुमको अपनी सलाहियत मनवाना है। अच्छा मला एप्लीकेशन दो आप, तो इंग्लिश में लिखने के लिए साहब मैं उर्दू में लिखूं क्या? अरे उर्दू कहाँ चलती है? या कम से कम चाहे तो अरबी में लिखना, पढ़े लिखे तो इंग्लिश में लिखना। नहीं जरा मुश्किल होगी क्योंकि सर मैं काम करता हूँ, जरा संभाल लो आप। मतलब फौरी यहाँ से उधर चले जाओ। नहीं साहब तो कम तनख्वाह पे काम कर लेता हूँ। क्या एक्सपेक्ट करे थे? कम से कम 10,000 रियाल सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था सर मैं। अब आप 6 भी दे दी तो कर ले दो। और आप 600 रियाल भी नहीं देते थे, 600 रियाल भी नहीं थे। गैर जरूरी माँ बाप का पैसा खराब, टाइम खराब, फिर वहां क्या उधर आके खुद की बेइज्जती, कौम की बेइज्जती, हैदराबाद की बेइज्जती, फिर हैदराबाद के तमाम नौजवानों को इसकी तरफ से वेरिफिकेशन पे डाल दी। मैं हमारा चीफ गेस्ट जोरदार तालियों से इस्तेमाल मैनेजर सिंडिकेट कुछ टाइम देने के लिए आए हैं। तो मैं बता रहा था आज हम ना अखबार में दिए और ना टीवी पे ऐलान कराए, ना को टीवी पे स्क्रोलिंग कराए आज के प्रोग्राम की, क्योंकि छोटे पैमाने पे हमको प्रोग्राम करना था, इसलिए ज्यादा लोग मौजूद नहीं हुए, लेकिन बस हमको प्रोग्राम कर देना था। और मैं मम्मी मशहूर तमाम हजरात का, तमाम परफॉर्मेंस का, कस्टमर ऑफिसर साहब का और खुसूसन हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब शेख महबूब साहब का, जो अपनी तमाम पर मसरूफियत के बावजूद तशरीफ लाए। तो बहरहाल मैं अपने तकरीर को खत्म करते हुए बच्चों से एक मरतबा ये ख्वाहिश करता हूँ, आप जिस भी स्कूल में हैं तालीम के मकसद को समझें, आगे क्या बनना है ये स्टडी करें, नेट पे बैठें, नेट का गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि नेट का इसलिए इस्तेमाल करें कि दुनिया के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजियां डेवलप हो चुकी हैं और किस टेक्नोलॉजी की और किस टेक्निकल आदमी की दुनिया को सब जरूरत है, वो बनने की कोशिश कीजिए। आज हमारे बीच में हमारे हैदराबाद के कल्चरल एसोसिएशन को डेवलप करने वाली शख्सियत जनाब गौस मोहिउद्दीन साहब भी हैं, जो साथ की सरगर्मियों पे, साथ के बेहतरीन कारनामों पर इंशाल्लाह आज हमारे मेहमान खुसूसी में साहब को जो है अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। और हमारी मुमताज सुल्ताना मैडम जो एक शायरा है, टीवी आर्टिस्ट है और एक सोशल वर्कर है, पोएट है, इनकी भी खिदमत पर आज जो है इनको अवार्ड दिया जाएगा। और ओएस इंटरनेशनल स्कूल का टॉपर बच्चा, क्या नाम है बेटा? हाँ मुजम्मिल, जो अगले पिछले टाइम पे भी जो बच्चा बेहतरीन अवार्ड हासिल करा और बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा ओएस इंटरनेशनल स्कूल का, जो हैदराबाद के टॉप मोस्ट स्कूलों में से एक स्कूल जो समझा जाता है। माशाल्लाह ये बच्चे को भी इंशाल्लाह इसकी बेहतरीन तालीम पर। और न्यू मॉडल स्कूल जो कदीम 50 साल पुराना स्कूल है और अब बूस्टर स्कूल, ऐसे बच्चे जो बेहतरीन रैंक लाए हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। आज के इस प्रोग्राम में न्यू मॉडल स्कूल की बच्ची के लिए भी एक जोरदार तालियां, बहुत मेहनत करके पढ़ी है बच्ची। और हालिया कौमी ऑर्गेनाइजेशन की जान से 2 दिन पहले ही जो है यहाँ पर अवार्ड का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। बेहतर हैदराबाद सिकंदराबाद के काफी स्कूल्स यहाँ पर आए थे, उनको बेहतरीन एसएससी मेरिटोरियस अवार्ड दिया गया। मैं समझता हूँ आप लोग भी यहाँ थे होंगे मौजूद बच्चों में। बूस्टर नशीर स्कूल का भी बेहतरीन मुजाहरा रहा और आई होप कि जो इसी तरीके से मुजाहरा बच्चे करते रहेंगे और स्कूल वाले मेहनत करते रहेंगे तो बराबर हमारी कौम एक दिन इंशाल्लाह तबारक व तआला उस पर काम करेगी। और एक बात जो स्कूल वालों पे यहाँ टीवी पे भी रिले होने वाला है ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला, हमारे अलावा कई लोगों को दिखेगा। जो बात बोलने जा रहा हूँ मैं, एक हुकूमत से भी मेरा रिप्रेजेंटेशन है, आवाम से भी है और जितने लीडर्स है, जो हमदर्द लीडर्स हमारे, उन तमाम से मेरी अदब ख्वाहिश है कि आए दिन हुकूमत की जानिब से इस्लाम वालों पर जो सख्त शराइत पेश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत इस्लाम वालों की मदद नहीं करती, बल्कि हुकूमत की मदद से, हुकूमत की इमदाद से आज तक पुराने शहर में स्कूल डेवलप होते आए हैं। और पुराने शहर के स्कूल कोई हुकूमत से टकराव के मौक़िफ़ में नहीं है, जैसा कि कुछ अखबारात में या कुछ तरीके से कुछ लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पुराने शहर के स्कूल हुकूमत से टकराव के मौक़िफ़ में, अदालत का दरवाजा खटखटाने के चक्कर में है। मैं नहीं समझता कि कोई स्कूल हुकूमत के खिलाफ है या हुकूमत से टकराने के चक्कर में या अदालत तक पहुंचने के चक्कर में, बल्कि पुराने शहर के वो स्कूल जो हमारे कौम को बेहतरीन तालीम कम मुआवजे में दे रहे हैं, उनका सिर्फ इतना मुतालबा है कि 1 साल या 2 साल की उनको मोहलत दी जाए। जो किताबें बंद करने का गवर्नमेंट का सालिबस, यकीनन गवर्नमेंट का सालिबस आना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले किया जा चाहिए था। अब लाखों लोग इस कारोबार से वाबस्ता हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स कारोबार से वाबस्ता हो गए, दूसरे कारोबार से वाबस्ता हो गए, स्कूल्स वाले जो है इंटीरियर लॉस से जो है वो हो गए। स्कूल वालों का लॉस किस तरीके से होता है हमको पता नहीं चलता। मैं आपको तो बातें बताता चलूं, यहाँ पे स्कूल वाले बैठे हुए हैं, स्कूल वालों का लॉस इस तरीके से होता है
कि सब लोग समझते हैं कि पूरे बच्चों में फीस लेकर स्कूल वालों के पूरे उंगलियां घी में, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई अखबार या कोई लोग सोचते हैं या कोई सहाफी गलतफहमी का शिकार होकर बात को लिखता है किसी अखबार में, तो बातें बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम स्कूल वालों से करीब है, दिन रात दोस्ताना है, उठना बैठना है, स्कूल वालों के तमाम तर मसाइल से वाकिफ है। उनमें से चंद मसाइल ये है कि अगर कोई स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों में से कम 150 से 200 बच्चे टाइम पर फीस नहीं लाते। ये बात फैक्ट है। तो में से कितने बाकी हैं? इतने बच्चे हैं यहाँ पे, ये तो में से तकरीबन 4 तो बाकी होंगे एक साल भर की फीस या कम से कम 6 महीने की फीस। लेकिन स्कूल इंतजामिया उन बच्चों को पैसे या फीस नहीं लाने के बुनियाद पर उनका तालीमी कैरियर खराब करने के लिए वापस घर को नहीं भेजता, बल्कि बिठा के तालीम देते हैं, नोटिस देते हैं, फीस लाओ, लेकिन घर को नहीं मिल जाते, टीसी देकर भगा देते नहीं। तो इस तरीके से किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो वो 1000 बच्चों में कम से कम 150 से 200 बच्चे बच्चियां फीस नहीं लाते, क्योंकि या तो उनकी इस्तेताअत नहीं होती, या तो लोग गरीब होते हैं, या तो अगर है तो उनके अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि फीस पे नहीं कर सकते और तालीम छोड़ा भी नहीं सकते। एनी फैक्टर्स आते हैं। तो उसके लिए हुकूमत को हमदर्दाना गौर करते हुए, अखबारात को हमदर्दाना गौर करते हुए, मीडिया को हमदर्दाना गौर करते हुए, इस बात को स्कूल वालों की परेशानी को समझते हुए कम से कम ये साल उनको किताबें कापियां बेच लेने की इजाजत दी जानी चाहिए जो तकरीबन बिक चुके हैं। क्योंकि आल्सो बिलोंग्स टू टीआरएस गवर्नमेंट। मैं टीआरएस जो पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ, इंशाल्लाह तबारक तआला सीएम साहब से और डीएससी साहब से थोड़ी देर पहले मैं डीएससी साहब का फोन भी करा था। कुछ कहीं डोंगरगढ़ में मीटिंग है, इंशाल्लाह प्रोग्राम था, जाएंगे बोल के प्रोग्राम के बाद, लेकिन इंशाल्लाह बराबर आज नहीं कल मुलाकात करके चीफ मिनिस्टर साहब से भी परमिशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, हमारे हृदय चीफ मिनिस्टर साहब जिनके इंसाना कौम पे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अंतिम जद्दोजहद के जरिए कोशिशें कर रहे हैं, तो उनसे जो है अदबन ख्वाहिश है मेरी मीडिया के जरिए 99 टीवी चैनल के जरिए कि स्कूल वालों के ताल्लुक से कुछ नरम गोशा वो अख्तियार कीजिए, क्योंकि स्कूल वाले कौम की खिदमत कर रहे हैं। हुकूमत के पास अभी ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है किताबों कापियों के लिए, ना बुक्स छपे हैं, और ना इतनी कम टाइम में हुकूमत इतने स्कूलों को बुक सप्लाई कर सकती है। तो अदबन मेरी ख्वाहिश है इंतजामिया से, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, तालीमी डिपार्टमेंट के, कि ये साल हुकूमत को प्राइवेट स्कूलों वालों को छूट दी जाए। अगले साल तक हम अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि जो है जो लॉसेस लास्ट ईयर स्कूल वालों को हुए वो रिकवर हो सके। कोई ज्यादा पैसे लाखों रुपए नहीं बचते। अगर कोई स्कूल अगर कोई किताबा कापियां बेचता है तो बमुश्किल उतना लाखों का बेचने के बाद उधर डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, बमुश्किल 30-35 हजार रुपए स्कूल इंतजामिया को बचते हैं, फिर भी 150 से 200 बच्चे जो फीस नहीं लाते उसकी 1% भी रिकवरी नहीं होती। ये चीज है। तो 99 चैनल यहाँ पे कवर कर रहा है, कल नशर होगा इंशाल्लाह, आप तमाम हज़रात देखेंगे। ये बात अखबारात तक, हुकूमत तक और तालीमी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों तक जाएंगी। तो इंशाल्लाह तबारक तआला मेरी हुकूमत से, हरदिल अजीज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, जो काफी मुसलमानों के लिए स्कीमात लॉन्च किए हैं और जो वादे किए थे उन्होंने इख्तियार से पहले, आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम वादों को पूरा किया जा रहा है। और इंशाल्लाह 12% रिजर्वेशन भी जो हमारे को दिया गया है इंशाल्लाह ताला वो भी मिलेगा। और दूसरी जितने भी जैसे शादी मुबारक स्कीम है और हमारे वजीफे की स्कीम है, ये जितनी स्कीम है ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट का कारनामा है, ये मुस्लिम कायदीन की नुमाइंदगी का कारनामा है जो केसीआर साहब बेहतरीन पैमाने पर हमारे को दिए हैं। तो इंशाल्लाह तबारक तआला मैं स्टूडेंट से ख्वाहिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तालीम पर और न्यू टेक्नोलॉजी की चीजों पर जहन को करें। और बहुत से मुखर्रिरीन हैं बैठे हुए, इंशाल्लाह ताला मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी तालीमी तरबियत पर ज्यादा तवज्जो दें। स्कूल इंतजामिया से भी मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग तालीमी तरबियत बच्चों को सही दें और टेक्निकली तौर पर स्कूल्स के टीचर को गाइड कीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं करना है। खुदा हाफ़िज़। ये थे प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी हैदराबाद के प्रेसिडेंट, given that the welcome speech to you. Now I request Sayyid Arifuddin Khadri Sahab to say a few words on this occasion. सदर इजलास और डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी के प्रेसिडेंट भाई सिकंदर माशूकी साहब,
अरनान साहब और जितने स्टेज पे बैठे हुए मुसज़ीन हैं वो सब, और नौजवानों और बुजुर्गों, आज का ये इजलास 46वीं बरसी के ऊपर इसलिए रखा गया ताकि नौजवानों में और स्कूल के तलबा के अंदर इस बात का अवेयरनेस पैदा किया जाए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अपनी ज़िंदगी से मिल्लत और कौम को एक अजीम नमूना पेश किया। अभी आप डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की सवाने हयात मासूम तालिबे इल्म से सुने कि वो हैदराबाद में पैदा हुए 1897 में, और पुराने शहर बेगम बाजार की आपकी पैदाइश है, जिसके ऊपर हमारे सिकंदर माशूकी साहब ने तफसीली रोशनी डाली कि उनकी एक जोड़ी है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस वक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 10 साल के थे, उनके वालिद का इंतकाल हुआ और 14 बरस में वालदा का इंतकाल हुआ। तो कम उम्री के ज़माने में जब बच्चा यतीम व यसीर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी का क्या हाल होता है आप बखूबी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने एक ऐसी मिसाल छोड़ी, यतीम यसीर होने के बावजूद भी 23 साल की उम्र में जामे मिलिया इस्लामिया के जो है बानियों में से आप शुमार किए जाते हैं। उस वक्त उम्र आपकी 23 साल की थी। 23 साल के कितने बच्चे आज हमारे शहर में मौजूद हैं, उनकी सोच और फिक्र और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की सोच और फिक्र में कितना तजाद है। एक 23 साल का बच्चा, एक जिसकी उम्र 23 बरस हो, एक जामे मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी की जो है संगे बुनियाद रखने के अंदर जो है शामिल होता है जिद्दोजहद के अंदर। और यही नहीं बल्कि एक वक्त ये आया कि जामे मिलिया का जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के करीब थी। यहाँ 31 साल की उम्र में जामे मिलिया का जो है अपने हाथ में जो है निजाम लेते हैं और वाइस चांसलर की हैसियत से जामे मिलिया के ऊपर जो है आप जो है विराजमान होते हैं। आपकी वो कोशिश थी जिसकी वजह से आज तक जामे मिलिया कायम है, वरना उसी जमाने में खत्म हो जाता। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की तालीमी खिदमत बिल्कुल सूरज के रोशनी की तरह आया है सारी कौम के सामने कि वो एक तालीमी मेमार थे कौम के। उन्होंने एक ऐसे नुकूश छोड़े कि एक यतीम यसीर लड़का भी जो है इस मुल्क का जो है सदर जमहूरिया तक बन सकता है। आप सदर जमहूरिया बनने से पहले बिहार के जो है 5 साल तक जो है गवर्नर की हैसियत से जो है खिदमत अंजाम दिए। फिर उसके बाद 5 साल नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से आपने जो है 5 साल खिदमत अंजाम दी। बताना यह मकसूद है कि आज हमारे बच्चे हर चीज की सहूलत है, माँ बाप जिंदा है और पैसे की फरावानी है। वो जमाना बड़ी तंदुरुस्ती का था और ये जमाना पैसे की बड़ी फरावानी का है। आज मिल्लत इस्लामिया के बच्चों के पास वैसी तंदुरुस्ती नहीं है और माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े। इसके बावजूद
पैसे की मौजूदगी, पढ़ाने के लिए माँ बाप की रजामंदी, ऐसे हालात नहीं है। आज से 30 साल पहले बच्चे को जो है कारखाने को भिजा दिया जाता था, जाके तुम कमा के लेकर आओ। वो हालात नहीं रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की बरसी का मनाने का मकसद यही है कि नौजवानों के अंदर तालीमी बेदारी को जो है बेदार किया जाए और उनके कार्य नुमाया आपके सामने रखें, ताकि आपके अंदर वो ख्वाहिश पैदा हो। सबसे बड़ा उनका कारनामा यह है तालीमी दिलचस्पी का कि 10 साल की उम्र में आप वालिद की जो है साये से महरूम हो जाते हैं और 14 साल की उम्र के अंदर माँ के साये से महरूम हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अपना तालीमी मिशन जो है नहीं छोड़ा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आज के इजलास से आपको मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि आप तमाम तर सहूलत के बावजूद फिर तालीम के मैदान में आगे क्यों नहीं बढ़ते। जब अल्लाह ने आपके माँ बाप को आपके सर पर सलामत रखा है और वो जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में आपको तालीम देना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज में तालीम देना चाहते हैं, इसके बरखिलाफ हमारे पुराने शहर के अंदर रोज रात में, चाहे वो बच्चा एसएससी का हो या इंटर का हो या ग्रेजुएशन का हो, चबूतरों की सीरत बना हुआ है। फजर की नमाज तक जो है आवारागर्दी चल रही है। उसका नतीजा एक यह हुआ, आज से जो है 15-20 दिन पहले सुबह में फजर के बाद आपस में दोनों बच्चे मजाक के अंदर जो है बच्चे का इंतकाल हो गया। कितनी मायूब बात है। और पूरे बच्चे अच्छे घराने के बच्चे हैं। तो ये हमारा माहौल किस तरफ जा रहा है, सोचने की और गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मैं सिकंदर माशूकी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने नौजवानों के अवेयरनेस के लिए जो ये प्रोग्राम रखा, काबिल तहसीन है और काबिल मुबारकबाद है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मौके को गनीमत जानकर तालीमी जो है मैदान में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सवाने हाथ बोलते हुए मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर कस्टम ऑफिसर साहब मिस्टर मीर अनवर मोहिउद्दीन to say a few words on this occasion. Assalamu alaikum. Respected Chief Guest Sahab, Manager Syndicate Bank, जो माशाल्लाह शेख महबूब शाहिद साहब है, जो respected मोहम्मद फजल रहमान साहब है, जो एजुकेशन फील्ड में आज के दौर में माशाल्लाह बहुत इमिनेंट पर्सनालिटी माने जा रहे हैं, और अल्लाह के फजल से और करम से माशाल्लाह और भी डेलीगेट्स जो बैठे हुए स्टेज पे सबको मैं मेरी तरफ से सलाम। और माशाल्लाह आप लोग खिदमत जो दे रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। एक हमारे माशाल्लाह एक कमिश्नर साहब थे कि हम को कभी कभी पढ़ाते थे तो बोलते थे कि सर 2 वे टीचिंग। तो ऐसा माशाल्लाह 2 वे टीचिंग का मतलब समझते हैं कि अभी जो सिकंदर माशूकी साहब और आरिफ खालिद साहब माशाल्लाह जो बयान किए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के ऊपर, ये पर्सनालिटीज जो है कि अल्लाह ताला हर एक को टैलेंट दिए हैं, वो टैलेंट को अपने आप में एक्सप्लोर करना बहुत बड़ी बात है। और छोटे रहने में जो सिकंदर माशूकी साहब जो माशाल्लाह अपने जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, और ऐसे पर्सनालिटीज को हम हमारी तरफ से हम सैल्यूट करते हैं कि आप जैसे लोगों की जो खिदमत है अपनी कौम के लिए, बच्चों के लिए और आने वाली नस्ल पीढ़ी की जनरेशन को डेवलप करने के लिए, इट्स वेरी हैट्स ऑफ। माशाल्लाह 99 टीवी के चैनल के साथ बैठे हुए लास्ट टाइम में आपकी भी स्पीच सुना मैं, माशाल्लाह बहुत एनकरेजिंग। और ये 99 जो नाम अल्लाह के है, ये आपके अल्फाज सुना सो मैं कि अल्लाह के नाम के एक नाम की एक बरकत है। वो 99 नाम है तो अल्लाह ताला के नाम की बरकत एक नाम की सिफत है। तो माशाल्लाह आप जैसे टैलेंटेड लोग हमारे मुस्लिम माशरे के कोहिनूर के डायमंड्स के बराबर है कि अपने को रेस्पेक्ट देना चाहिए। बच्चों से ही गुजारिश है
कि अपने टीचर्स को, अपने माँ बाप को, अपने करस्पॉन्डेंट्स को इतनी रिस्पेक्ट दे, और अल्लाह ताला उनके जरिए से हमको नॉलेज पहुंचा रहे हैं, उनके जरिए से, माँ बाप के जरिए से अपने खाना, रिज़्क़ और टीचर्स के जरिए से तालीम इल्म अपने को मिल रही है। और अल्लाह ताला उनको हमेशा उनके लिए दुआएं करें, और ये समझे कि टीचर्स हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है। और अल्लाह की मदद से हमको पास हिंदू टीचर्स पढ़ाए हैं, हम उनको भी रिस्पेक्ट अभी भी करते हैं, कहीं पर भी रोड पे मिलो, कहीं पर भी रास्ते में दिखो। और ये चीज जो भी हासिल होती है, जो अल्लाह ताला हर एक का मुकद्दर लिख दिए हैं, अपन पैदा होने से 300 साल अपना को क्या मिलने वाला है, अपना मुकद्दर लिखा गया है कि लोग जो गलत तरीके से गलत चीजों में पढ़ के, गलत सोबत में जाके, गलत हरकतों में मुब्तला होके अपना नाम खराब कर रहे, कौम का नाम खराब कर रहे, अपने मुसलमानों का नाम खराब कर रहे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अभी जो साफ फरमाए हैं आबिद कादरी साहब कि वो माँ बाप नहीं थे उनके, यतीम थे वो, तो यतीम बच्चा इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना इट्स वेरी वेरी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चीज है वो। और हम तो थे काबिल, अपने आप को अपन कभी काबिल नहीं समझना, हमेशा स्टूडेंट समझना। कितने भी बड़े पोजीशन पे आ जाओ, कितने भी बड़े पोस्ट पे आ जाओ, हर रोज नया रोज है, हर दिन नया दिन है, हर दिन सीखना है हमारे को। और माशाल्लाह अभी कस्टम्स में आप देख रहे होंगे, आप किस तरीके के लोग सोना लेके आ रहे, पेपरों में पढ़ रहे, न्यूज में पढ़ रहे, वो गवर्नमेंट की चोरी करके कुछ अपने आप को कमाना चाह रहे, ओवरनाइट बिलियनर बनना चाह रहे, क्या हो रहा, पकड़े जा रहे, किसकी बेइज्जती हो रही, किसका नाम खराब हो रहा, कि वो किस अंदाज से लोगों के सामने जलील हो रहे। उस्ताद ये करस्पॉन्डेंट्स इतनी मेहनत ना कर रहे बच्चों के पीछे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, गलत रास्ते पे पढ़ के, गलत क्या डायरेक्शन में जाके गलत तरीके से अपना नाम खराब करे, तो घर का नाम खराब, खानदान का नाम खराब, माँ बाप का नाम खराब, महल्ले का नाम खराब, शहर का नाम खराब, फिर आखिर में किसके ऊपर आता है, मुसलमान और इस्लाम पे। तो मुसलमान और इस्लाम की अपने को इज्जत करना है, अपने को उसका टेक केयर करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। माशाल्लाह उस्ताद, माशाल्लाह आप लोगों के करस्पॉन्डेंट जो भी है एक्सेलेंट पर्सनालिटीज है, मैं एक से मिला हूँ, माशाल्लाह बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है। और अल्लाह ताला उनका एक हर 5% 10% के बच्चे सीख लिए, और बच्चों में अंदर से इंटरेस्ट है, एक मोटिवेशन होना कि हमको सीखना है, हमको समझना है, ये चीज समझ नहीं है, 10 बार जाइए आप उनके पास, झिड़क नहीं दो, झिड़क नहीं दो। उस्ताद की झिड़क में आप सीखते, उस्ताद के थप्पड़ में आप सीखेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है ना, उस्ताद खुश होते, कोई उस्ताद मारता नहीं, उस्ताद के दिल में रहता है कि बच्चों को सिखाना ही है मेरे, और जो बच्चे अच्छे नहीं करते उनका भी नाम होता। तो माशाल्लाह। और प्रैक्टिकल जो चीजें है ना, सब्र और टॉलरेंस, सब्र बोले तो गुस्सा, आजकल के दौर में बच्चों को नाक पे गुस्सा, कोई कुछ बोल दिया, एक नए पैसे का टॉलरेंस नहीं, पलटा के उस्तादों को थप्पड़ मार दे रहे, पेपरों में पढ़ रहे हैं, कोई माँ बाप बच्चों को उस्ताद डांटा तो माँ बाप आके उस्ताद को डांट रहे, ये बिल्कुल अमल गलत। आप कौन सा भी उस्ताद को खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, माँ बाप को बुला के कोई गाली खिला रहा है, कि बहुत गलत बात है। आजकल के पेपरों में, न्यूजों में आ रहा है चीजें, हम देख रहे हैं, बहुत मायूब बात है। उस्तादों की इज्जत नहीं करेंगे, आप ना किधर की भी नहीं रहेंगे, वो कोई भी रंग हो, वो कितना भी बड़ा ऑफिसर का बेटा है, तो वो कितना भी बड़ा मिनिस्टर का बेटा है, उस्ताद की जब तक कदर नहीं करेंगे ना, उन्हें कहीं का भी नहीं रहेगा। तो उस्तादों की इज्जत करना आप लोगों का बेसिक फर्ज है, और उस्तादों की इज्जत करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप खुद देखेंगे कि आप लोग क्या, एक हमारे प्रेमचंद साहब थे, सब कमिश्नर थे, उन्होंने मेरे पढ़ाते थे कस्टम्स के बारे में, और मेरे घर को बुलाते थे, आप घर को आओ, तुम मेरे महकमा को पढ़ा दो। बोला साहब मैं आपके घर में, आप कमिश्नर साहब, मैं बिल्कुल छोटा, मैं इंस्पेक्टर था उस बारे में, तो बोलते थे इसे 2 वे ट्रेनिंग बोलते थे, मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा, मैं खुद सीखूंगा, क्योंकि मेरे को भी रिवाइज करना रहता, मेरे को भी कोई रूल्स मैं भूल जाता हूँ, कोई नोटिफिकेशन भूल जाता हूँ, मैं कोई सर्कुलर भूल जाता हूँ, तुम्हारे को मुझे बोलूंगा तो मुझे भी याद रहेगा वो। तो हर दिन नया दिन है, क्योंकि कस्टम्स डिपार्टमेंट में ऐसा है कि रात में एक रूल रहता, सुबह में एक रूल रहता, कल एक रूल रहता, परसों एक रूल रहता, 4 महीने पहले एक रूल रहता, 2 साल पहले का एक रूल रहता। तो ये चीजें जो डे टू डे चेंजेस जो बोलते ना लोग, तो अभी माशूक साहब माशाल्लाह इस अंदाज से बोले कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट पढ़ाई, लेटेस्ट चीजों में आप लोगों का इंटरेस्ट है ना, IFS बनना, IRS बनना, IFS
क्या और क्या बोले आप सब, बहुत सारी चीजें बोले, रेड आउट के इंजीनियर से लेकर हर लिहाज से बोले कि ये माशूकी साहब की जो नॉलेज है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो बच्चों में आप लोगों में जो फैला रहे हैं और इस तरीके के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू सैल्यूट हिम, बिकॉज ये चीजें जो है ना अपने को मोटिवेट करने वाले हमारे जमाने में कोई नहीं देता, ठीक है बोला है, हमारे जमाने में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज करके बच्चों को गाइड करने के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आए, और हम हमारे से पूछते थे, इनके पास जाते थे, उनके पास जाते थे, कोई अच्छी बात करता था, कोई एंटरटेन करता था, कोई बिठाते थे माशाल्लाह, कोई छिड़के तो नहीं हमको, बट कोई अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बताते थे, कोई हिसाब से बहुत बताते थे। तो हमारे में आदत थी कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर हो जाके बैठना, उनकी 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 बात सुनना, उनकी नॉलेज को गेन करना, उनके पास बैठने से कुछ हासिल होता हमको। तो कभी भी बात याद रखिए कि नॉलेजेबल आदमी के पास बैठने से आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल होता है, और अच्छी सोसाइटी मेंटेन करिए कि माशाल्लाह आप लोगों के उस्तादा, सबसे बड़ी बात उस्तादा और पेरेंट्स, माँ की दुआ बहुत बड़ी काम करती है, ये बात ज़हन में रख लो अपना स्टूडेंट्स, क्योंकि माँ जो दुआ देती है वो बच्चे को आसमान में जाके तीर जैसा अल्लाह के पास कबूल करके लेके आती दुआ। तो अम्मा की दुआ हमेशा लेते रहना। तो अम्मा को पापा ने क्या करते, अम्मा ये कुछ बोल रहे नहीं सुन रहे, अम्मा झड़क देते, अम्मा से मुंह बुला के लग लेना, ये चीज़ा नहीं। अम्मा की दुआ, अम्मा के पैर के नीचे जन्नत है। अपने को कामयाब होना है, माँ की दुआ लेते जाना। ये बात हमेशा बुढ़े होने तक, कितने भी बुढ़े हो जाओ अम्मा की दुआ लेते रहना। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर मास्टर साहब हमको बुलाए हैं, और हमको बुलाए हैं यहाँ पर, हमारे को इज्जत अफजाई भी दी है माशाल्लाह, आप जैसे लोगों के साथ बैठने का मौका दिए है। खलील साहब का भी माशाल्लाह, और स्टेट बैंक सिंडिकेट बैंक के मैनेजर साहब का भी, तहसील साहब भी माशाल्लाह बहुत बड़े पर्सनालिटी है, बैठे हुए हैं। बहुत आपस के झगड़ों को, मियाँ बीवी के झगड़ों को सॉल्व करने का जो मिशन लेके चला रहे हैं, अल्लाह की वजह से अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबियाँ दे, क्योंकि आपस में फूटान डाल के लोग मुसलमानों को छोड़ दे, एक ग्रुप बनता एक तरफ, एक ग्रुप बनता एक तरफ, आपस में मुसलमानों को पिछाड़ दे रहे। मुसलमानों की यूनिटी, मुसलमानों ने, हमारे वालिद साहब बोलते थे, बंदे को देखो और जानदार को देखो अल्लाह की मखलूक है, और मुसलमान को देखो आपस में एक दूसरे के साथ हुजूर की उम्मती हैं बोल के फिरके आपस में खानदानों में तोड़ देना। तो तहसील साहब वो फील्ड में माशाल्लाह चैंपियन बने हुए हैं, उनका मास्टर फुल फ्लेज ऑफिस है, अल्लाह की वजह से उन्होंने हर एक को कन्विंस कर रहे, हर एक को काउंसिल कर रहे, हर एक को समझा रहे। कई किस्म के प्रॉब्लम, मैं भी गया था, 2-4 बार मौका मिला साहब के साथ बैठने का। बहुत एक्सेलेंट पर्सनैलिटी है, सबको समझा के मना के। और सिकंदर माशूक साहब की पर्सनैलिटी माशाल्लाह माशाल्लाह, हर फील्ड में हर एक का टैलेंट है, हर एक का टैलेंट को अपन ऑब्जर्व करना, अपनी जहन से जो है सो उनको समझना, वो पर्सनैलिटी क्या है। अल्लाह ताला हर एक को एक टैलेंट देके पैदा कर, कोई भी वेस्ट नहीं है। बहुत साहब भी माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनालिटी बैठे हुए सामने, हम भी आपके प्रोग्राम्स कई सुने हैं, और आपके माशाल्लाह 99 की वो लास्ट में बैठे हैं साहब, वो मेहना मस्तान साहब है बाजू के, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पर्सनालिटीज है। और क्या है, छुपे हुए क्या बोलते अनसंग हीरोज जो बोलते ना, जो छुपे हुए खजाने हैं। ये तो पास खजाने दिख के आ रहे, पास खजाने अपनी जगह काम कर रहे। तो ये खजानों को अपन माशाल्लाह जाना, उनकी सोहबत में बैठना, उनके साथ उठना बैठना, ये नहीं समझना कि उन्होंने गैर है, हमारे है, अपने हैं, अपन जाना, पूछना, घबराना नहीं। ये चीज समझ में नहीं सर। सिकंदर मास्टर साहब बोले ये प्रॉब्लम IAS बनने का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है IAS किसको भी बोलते। अब उन्होंने क्या बोले ना MBA मास्टर इन बेकार एसोसिएशन, तो वैसा मास्टर इन बेकार एसोसिएशन नहीं, बहुत काम की एसोसिएशन है। साहब जरा बताइए क्या बेकार एसोसिएशन है, MBA का फुल फॉर्म क्या है, मेरे नहीं मालूम है कोई भी। अपन कभी भी मालूम रखते हुए भी अपन नहीं मालूम की ऐसा रहना, ताकि सामने वाला अपने को कुछ पढ़ा सके, सिखा सके। तो ये बड़े लोगों के पास से अपने को सीखने की कोई चीज मिल सकती। तो अपने अपने आप इतना अपन काबिल बता दे रहे कि वो बोलेंगे क्या भाई मैं तुम इतने काबिलियत पढ़ते हो, मैं क्या तुम सिखाऊं। वैसा नहीं, उनके पास और काबिलियत रहती। अपनी टैलेंट को कभी भी अपन दबा लेना बड़े लोगों के सामने, उनकी जो भी टैलेंट है अपन सीखना उनसे, क्योंकि अपनी उम्र आगे बहुत बढ़ने वाली, आगे अपने को और मौके मिलने वाले। तो जितने भी बड़े लोग हैं माशाल्लाह, आप भी साथ बैठे हुए, पता नहीं कौन है, माशाल्लाह काबिल इंसान है। नहीं, इंसान को कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं समझना, किसी सामने वाले को डिग्रेड नहीं समझना, ये इज्जत देना। और हम जो बात कर रहे हैं सामने की टेबल पर जाके हम खुद सुनना, समझना कि हम क्या बात कर रहे हैं, उनको क्या गुजर रही है हमारे ऊपर, वो हम जो बोल रहे हैं उनको क्या गुजर, अपन पूरी टेबल के सामने की कुर्सी में जाके बैठना। तो इस अंदाज में अपन अपनी बिहेवियर को, क्योंकि मुस्लिम बिहेवियर बहुत खराब है, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी हम देखते हैं, बाहर से आते हैं, प्लेन में उतरते हैं लोग,
सूट बूट में रहते हैं, जबान जब खुलती है इतनी बदतमीजी की गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कि बाद ऐसे भी अखलाक के लोग आए कि बिल्कुल मामूली कपड़े पहने हुए रहते, बाहर से उसमें दिखते, पर जब जबान खुलती है कि मुंह से कुल्हड़ियां गिर रहे, तो इस अंदाज की गुफ्तगू होती। तो अल्लाह की वजह से माशाल्लाह अपन अच्छी तो कभी भी अच्छाइयों के साथ रहना, अच्छाइयों को देखना, अच्छाइयों के साथ। इसके साथ ही माशा बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Mir Anwar Mohidin Sahab, Custom Officer. Thank you very much for your valuable advice and the suggestion. I welcome Ahmad Idris Sharif Sahab. So, yes, correspondent to Brilliant Mission High School. Now, I request Madam Mumtaz Begum to say a few words. She is a poet, press reporter, a TV announcer. So many things are there. This I request please. अस्सलाम वालेकुम एंड सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो एजुकेशनल पर्सनालिटी थे जिसको आज तक हम लोग कायम रखे हैं, और ख़ास करके उर्दू कॉन्सेप्ट में तो मैं इन सब का तहे दिल से इस्तेमाल करती हूँ और मुझे भी इन लोग शामिल किए, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द करेस्पॉन्डेंट्स ऑफ द स्कूल एज वेल एज मखसूसी साहब। और आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि बीइंग अ फीमेल, मैं एक लड़की होने के नाते मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक नर्सिंग स्कूल से पढ़ी हुई थी जिसमें सिर्फ इंग्लिश तालीम था। और इसके बाद में जो है माँ बाप का ये होता है कि चलो लड़की जब पढ़ ली तो इसकी शादी करवाना, लेकिन मेरे पास इतना टैलेंट था कि मैं हार नहीं मानी। और एज एजुकेशनल बैकग्राउंड से मेडिकल रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट, जैसा कि आप बताएं कि सब लोग लड़की है तो इंजीनियर, लड़की है तो डॉक्टर, लड़का है तो इंजीनियर, लेकिन अगर आप देखा गया तो सऊदी अरब या अरबिक मुल्क में 1 लाख इसकी तनख्वाह है। तो मेडिकल रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट जो आईसीडी कोडिंग्स, इंटरनेशनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, तो इसमें मैं जॉब कर चुकी हूँ इन मिनिस्ट्री में सऊदी अरब से। उससे हटके मैं इस्लामिक रिसर्च की हुई हूँ साइंटिफिक सऊदी अरब से, एंड आई डिड फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम NIFT। इसके बाद जो है मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो आप सबके चेहरे उतार सकती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा इस्लामिक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड के हिसाब से अपने हदूद में रहना पड़ता है। इसके बाद जो है कुकिंग इन्वेंट करी हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। अगर मेरा भी अगर खिदमत अगर मैं दे सकती हूँ ये जाकिर हुसैन फाउंडेशन में तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरा काम जो है मैं अपलिफ्ट करती हूँ। मैं अपने बहनों को मैं खास करके ये बताना चाह रही हूँ कि आजकल के माशरे में जो है लोगों की शादियाँ जो हो रही सिर्फ 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल तक ही रह रहे वो लोग, और उसके बाद इनके अपने तलाक हो रहे कर रहे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर लड़कियाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं विद एजुकेशनल बैकग्राउंड से, या ये जो हुनर है इनके पास, इनको काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब मैं इंग्लिश में थी तो उर्दू जो है मैं खुद से सीखी, क्योंकि मेरे नर्सिंग स्कूल में जो है उर्दू नहीं था, तो मैं खुद से सीख के मैं एक शायरा बनी और मैं गज़ल्स लिख के अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने हैदराबाद का नाम रोशन करती हूँ मैं, और जो हालात होते हैं वो हालात को महसूस करवाती हूँ मैं, और सबको ये दिखाती हूँ कि एजुकेशन ऐसी है कि हम खुद सीख सकते सब चीज़। और दूसरा जो है कि मैं आज एक उर्दू न्यूज़ पढ़ती हूँ जो मुझे व्हाट्सएप TV चैनल के थ्रू मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली। से टफेस्ट न्यूज़ है, लेकिन जो है मेरी न्यूज़ खास करके स्पेशल न्यूज़ जो होते हैं अपने फेक एनकाउंटर पे जो हुआ था, तो हमारे मुसलमान लोग जो शहीद हुए थे, तो इनको अगर हम जितना हो सके स्प्रेड करें तो आवाम में ये आवाम को ये महसूस करवाना हमारा काम है कि हमारे जो मुसलमान लोग हैं सिक्योर नहीं है कहीं पर भी, उनको कभी भी कुछ भी हादसे से जो है कभी भी इनकी मौत हो सकती है। तो इस हिसाब से जो है मैं स्पेशल न्यूज़ बना के हाईलाइट पूरा यूट्यूब में उसमें और बहुत सारे ऐसी चीज़ों में मैं करती हूँ। तो उर्दू न्यूज़ इतनी टफेस्ट न्यूज़ थी, लेकिन मेरे चैनल की तरफ से मुझे इतना हौसला अफजाई मिली थी जिसमें मैं आज उर्दू न्यूज़ ही पढ़ती हूँ। ख्वातीन के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम्स करती हूँ लाइव टेलीकास्ट, जिसमें ताजुब तो ये हुआ है कि मैं सिर्फ ख्वातीन का साथ नहीं देती हूँ, मैं नाम तो है ख्वातीन के मसाइल, लेकिन उसमें मैं सबको वेलकम करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लड़के फ़ोन करते हैं हमें उनके अपने मसाइल से कि हमें बीवी मारती है, हमें ऐसा करती है। तो जो है हम सिर्फ औरतों का साथ नहीं देना, क्योंकि अगर हम मर्द को भी अच्छा साबित करें तो हो सकता है घर का माहौल तब्दील हो, जिसमें हम हमेशा मर्द ही बुरा है बोलते, ननन बुरी है, सास बुरी है बोलते, लेकिन मेरी बहनों हमेशा ना हम लोग इसका एडवांटेज उठाते हैं
اور ایک چھوٹی سی مثال کی ایک لڑکی ہے جو B.Ed کری ہوئی ہے تو وہ بولتی کہ کیا ہے میں چولہا چکی اور شوہر کے اس میں رہ گئی، تو وہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتی کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں یہ گھر میں آ کے کر کے، لیکن وہ اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کر سکتی، وہ اپنے جو بھی ہنر ہے وہ اسپریڈ کر سکتی اپنی اولاد کے تھرو سب چیز. تو ضروری نہیں ہے کہ تعلیم پڑھ کے نوکری کرنا ہے کوئی چیز، اگر اچھا سسرال ہے تو وہ اپنا ایجوکیشن اسپریڈ کر سکتی ہے اپنے خود سسرال میں. تو اب ایک شاعرہ ہونے کے ناطے میں ایک غزل کے ساتھ میں ایک نظم کے ساتھ ختم کرتی ہوں. تو جو ہے آج کل کا جو ہے کچھ دن پہلے جو ہے 100 بچے مارے گئے تھے اور 100 بچے زخمی ہوئے تھے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر پاکستان کے خلاف بھی ہو یا کچھ بھی ہو تو، لیکن بچے جو ہے معصوم بچے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ درد ہم سب محسوس کریں. تاریخ گواہ ہے کہ فرعون کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. ہر ایک شعر توجہ کا طالب ہے. کھلنے والے پھول تو کھلنے سے پہلے مرجھائے، کھلنے والے پھول تو کھلنے سے پہلے مرجھائے، ایسا بھیانک منظر یا رب کسی کو نہ دکھلائے. اسے کہو شیطانی سازش، بچوں پہ بارود کی بارش، دل کے سچے عمر کے کچے، خاک ہوئے معصوم سے بچے، آئے تھے اسکول میں پڑھنے علم کے وہ منزل پہ چڑھنے، میت کے اشکوں کا ماتم کیا ہوگا ماں باپ کا عالم، زندہ بچہ گھر سے جائے اور جنازہ آئے، ایسا بھیانک منظر یا رب کسی کو نہ دکھلائے. جدا ہوئے ہیں سر سے جب تن، خون سے بھرا اسکول کا آنگن، زندہ رہا تو بنتا کوئی حافظ قرآن عالم مفتی، لاشوں کے انبار پہ چل کے پھولوں سے بچوں کو مسل کے، دیکھ کے شیطان بھی ہے شرمندہ، مرا نہیں فرعون ہے زندہ. دنیا کی آواز یہی ہے، دل کی صدا ممتاز یہی ہے، کون سے جرم میں ظالم ان بچوں پر بم برسائے، ایسا بھیانک منظر یا رب کسی کو نہ دکھلائے. تو چلتی چلتی جب اگر نام ممتاز ہے تو ایک 4 لائن آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ممتاز اکثر جڑی ہوئی ہے تاج محل سے، تو تاج محل میرا ہی ہے. تو جہاں میں عشق کی معراج کا یہی ہے بدل، جہاں میں عشق کی معراج کا یہی ہے بدل، زمانہ اس کو نہیں کہتا شاہ جہاں کی غزل، جو دیکھو سچی محبت کا ثبوت ہے یہ، اگر ممتاز نہ ہوتی نہ ہوتا تاج محل. Now I request Mr. Ahmed Sultan Sahab, correspondent Reliance Grammar High School. Before that I welcome Shakir sir from the Crescent High School. Sir, बच्चे जरा Shakir sir. So now sir, Sultan Ahmed Sahab, a few words on this occasion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج کا جو اجلاس یہاں قائم کیا گیا ہے اس اجلاس پہ تشریف فرما جتنے بھی مہمان خصوصی یہاں بیٹھے ہیں، شاید ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو خواب دیکھے ہیں اس خواب کی تعبیر کا ایک حصہ ہے. جتنے بھی دائز پر تشریف فرما یہاں پر اسکول کے ڈائریکٹرز ہیں، ان بچوں کی تعلیم کے لیے، خاص کر مسلم معاشرے کے بچوں کی تعلیم کے لیے جو جستجو اور جدوجہد کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ان تمام اسکول ڈائریکٹرز کے لیے، اسکول کرسپونڈنٹس کے لیے ایک اشعار کہوں گا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، کفن ہوگا وقت اپنا. آج حکومت کے جانب سے جو تکالیف ہمیں پیش آ رہے ہیں، ہم جو جذبہ لے کر آگے بڑھے ہیں کہ ہم ہماری مسلمان قوم کو ایک تعلیم یافتہ قوم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ صرف قرآن کی ایک لائن ہم لے کر چل رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی، پڑھ، اللہ کا نام لے کر پڑھ، اور ہم اسی لائن کو لے کر آگے بڑھے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسکول کرسپونڈنٹ خاص کر کے یہ پروفیشن چنا نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہے کہ اپنی قوم کو
अपनी मुसलमान कौम को तालीम से आरास्ता करे। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक ये स्कूल करस्पॉन्डेंट्स, ये स्कूल डायरेक्टर्स यही कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे मुसलमान बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे। हमारा सारा दिन सारा वक्त इसी में गुजर जाता है कि इनको कैसे डेवलप करे, आगे चलकर इनको जो है सो इनके करियर के लिए, इनके फ्यूचर के लिए कैसे तैयार करें। शायद इस बात से किसी को इनकार ना होगा कि आज सारी दुनिया मुसलमान कौम के खिलाफ है, नहीं चाहती कि मुसलमान कौम तालीम में याफ्ता हो, नहीं चाहती कि मुसलमान कौम आगे बढ़े, उनमें डेवलपमेंट आए। लेकिन हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि वो तालीम हासिल करे, इन मुश्किलात को, इन मुसीबतों को पार करते हुए आगे बढ़े। आज जो स्टूडेंट 14-15 साल एसएससी पास करके जाता है, देखने पर ये अफसोस होता है कि उसके पास उसकी आगे की जिंदगी के लिए कोई मंसूबा नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई मंजिल तय नहीं है। आज हमारे जो स्कूल्स कॉन्फेडरेशन बनाए हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसी कोशिश में लगे ही हैं कि इन बच्चों के दिलो दिमाग में एसएससी पास करने के साथ साथ अपने आगे के मुस्तकबिल के लिए इनके पास एक पुख्ता इरादा हो, एक बेहतरीन मंसूबा हो, ताकि आगे चलने पर इनको मालूम हो कि हमारी मंजिल कहाँ है और हमें कहाँ पहुंचना है। और ऐसे हालात में हम काम कर रहे हैं ताकि हमारी कौम को फायदा हो। ऐसे हालात में हुकूमत चाहती है कि जितने भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स है उनके ऊपर काफी सख्ती से पाबंदियां आयद कर रही है। एक छोटी सी मिसाल है, अभी हमारे सिकंदर माशूकी साहब कह रहे थे कि एसएससी 1st to 5th क्लास के जो सिलेबस है, प्राइवेट सिलेबस हम जो पढ़ाते हैं, हुकूमत अचानक 17 मई को उठकर कहती है कि नहीं भाई आपको जो है सो गवर्नमेंट सिलेबस पढ़ाना है। ठीक है, हम तैयार हैं, हुकूमत के खिलाफ हमें जाना भी नहीं है क्योंकि हुकूमत हमारे बेहतरीन के लिए है। लेकिन 17 में तकरीबन इतना वक्त गुजर चुका है, स्कूल के एनुअल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, स्कूल के रिजल्ट्स खत्म हो चुके हैं, बच्चे छुट्टियों पर जा चुके हैं, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर अपने अजीजो खारिज के पास जा चुके हैं। ऐसे हालात में हम बच्चों को कैसे इंफॉर्मेशन देके भाई आपको जो है सो प्राइवेट बुक्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट बुक्स खरीदना है। आज 17 मई के बाद में गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इंडेंट तैयार करके दीजिए हमें, हम आपको बुक्स देंगे, जबकि वहां मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई बुक्स प्रिंट नहीं है। लास्ट ईयर जो डिले हुआ है बुक्स में, उसका असर आप लोग एसएससी के रिजल्ट्स पे देख सकते हैं। पिछले सालों इतने बेहतरीन रिजल्ट थे, 80-85% के करीब हम एसएससी के रिजल्ट्स लाए, लेकिन अचानक देखते हैं तो रिजल्ट्स नीचे आ गए। हर स्कूल के रिजल्ट का ग्राफ गिर चुका है। इसके वजह गवर्नमेंट जो बुक्स के लिए डिले करी और जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए डिले करी, टीचर्स को ट्रेनिंग मिली जनवरी के महीने में और एग्जाम से मार्च में, 3-4 माह के जो वक्फे में हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर भी हर प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का करस्पॉन्डेंट अपने जाती वक्त में से और मजीद वक्त निकालकर कोशिश ये करता रहा कि जो है सो रिजल्ट्स अच्छे आए। अगर इस चीज को कंपैरिजन में देखना है तो जो असातिज़ा गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, जो वेल ट्रेन वेल क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अगर हम रिजल्ट देख रहे हैं तो सिर्फ 38% है, वेयर एज द प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स 58+% जो है सो एवरेज रिजल्ट जो है हासिल कर चुके हैं। आज गवर्नमेंट स्कूल के हाईएस्ट अगर हम देख रहे हैं तो 7.5, 7.8, इससे ज्यादा मैं अभी मायने नहीं देगा, शायद हो सकते हैं, लेकिन आज हमारे प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में 9.5, 9.8 तक भी जो है हम रीच कर चुके हैं। और आज हम मुसलमान कौम खास करके जब हमारी मुसलमान कौम को तालीम के लिए आगे बढ़ रही है तो किस तरह के रुकावटें हमको सामना करना पड़ा है। एक स्कूल एक ऐसा मुकाम है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह खुद गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से जानती है, हुकूमत अच्छी तरह से जानती है कि हम यहाँ पर फायदा कमाने के लिए नहीं, बल्कि हम बच्चों को तालीम देने के लिए, हम सोशल वर्क के लिए जो है यहाँ पर आए हैं। आज पेपर्स के जरिए ये बताया जाता है कि स्कूल्स काफी जो है सो लूट मार कर रहे हैं।
क्या आप बता सकते हैं आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, वहां फीस नहीं होती है। अब कल ही की बात है, 3 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं 4th क्लास के, दे डोंट नो द टेबल ऑफ 2, 2 बार पहाड़ा नहीं सुना सक रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट वहां के टीचर्स को 70,000, 80,000, 50,000 तनख्वाह दे रही है। अगर प्राइवेट स्कूल्स वाले कुछ कोशिश करके हमारी कौम को जो है तालीम देना चाह रहे हैं, मुसलमान बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये रुकावट है क्यों? प्राइवेट स्कूल है आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगा, आप प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल पे करिए, आपका स्कूल, आप स्कूल में जो है सो बुक्स ये कर रहे हैं, भाई इतनी धूप में पेरेंट्स जो है सो बुक्स अवेलेबल नहीं होते। अगर गवर्नमेंट बुक्स भी खरीदने जाते हैं तो 10th क्लास के 4-4 वक्त पेरेंट्स फिर के आके बोलते सर आप ही लाके दे दीजिए। अगर हम ये कोशिश करते हैं कि माँ बाप को धूप में ना भिड़ा के अगर एक स्कूल पे काउंटर डाल के तमाम सहूलत अगर दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको वैट पे करना पड़ेगा। फिर कलेक्टर गवर्नमेंट ये कहती है आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल है। तो फिर हमारे को जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद, हम जो सारे मुश्किलात का सामना करते हुए जो बच्चों को तालीम देना चाह रहे हैं, कि गवर्नमेंट हमको कहां से सहूलतें फराहम कर रही है। आज ये प्राइवेट स्कूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने बलबूते पर अपनी कौम को तालीम देना चाहती है। और आज कल जो माहौल बना चुके हैं कि भाई ऐसा नहीं, इसको इस तरीके से करना है। अगर हमको प्रॉपर टाइम पर इंफॉर्मेशन देते हैं, आप 1, 2 महीने 3 महीने पहले अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई आपको ये सिस्टम फॉलो करना है, 2-2, 4-4 बार जो सो एकेडमिक कैलेंडर तैयार होता है, और उस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से हमारे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये इंफॉर्मेशन आती है, ये ऑर्डर आता है कि ये समर हॉलीडेज में आप लोग अपने बच्चों को FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है सो होमवर्क दे दीजिए, उनके जो है सो तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर हमको हॉलीडेज में ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के होमवर्क देना है, हम उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है सो प्रोजेक्ट वर्क देना है, तो सिलेबस कहां से लाएंगे? ऑलरेडी हमको जो है सो मार्च में तैयार कर लेना पड़ता है सिलेबस कि भाई हमारे हॉलीडेज में ये वर्क देना है। और जबकि हॉलीडेज में बच्चे वो काम कर रहे हैं, अचानक 17 में को जो है सो एक ऑर्डर आता है कि नहीं आपको जो है सो 1 to 5 प्राइवेट बुक्स जो है सो यूज करना। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैं हुकूमत से यही चाहता हूं कि भाई हम जो हमारी मुस्लिम माहौशरे को पढ़ाने के लिए जो कोशिश और जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें रुकावटें ना पैदा करें। हमको ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने पहले इन्फॉर्म करें, ताकि हमारे पास भी वक्त होगा कि हम कुछ तैयारी कर सके। ऑलमोस्ट पेरेंट्स होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए बच्चों के बुक्स खरीद चुके हैं। क्या ये दोबारा पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा? ये हमारी सी एक छोटी सी अदना सी कोशिश है कि हम हमारी कौम को तालीम देना चाहते हैं, जो आज से 50 साल पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ख्वाब देखे कि मुस्लिम कम्युनिटी, वेल एजुकेटेड कम्युनिटी और 100% मुस्लिम लिटरेसी चाहते हैं। ये सिर्फ स्कूल के करस्पॉन्डेंट की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल माँ बाप ये सोच बैठे कि हम स्कूल में डाल दिए, हमारा काम खत्म हो चुका है। लेकिन सिर्फ स्कूल में बच्चा 6 घंटे 7 घंटे रहता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बाकी के 24 घंटे में से 18 या 17 घंटे बच्चे आपके साथ रहते, माँ बाप के साथ रहते। लेकिन माँ बाप इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहते कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसको पलट कर क्या शाम में जो चेक नहीं करते कि क्या होमवर्क मिला है, टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या प्रोजेक्ट वर्क दिया। आजकल हमारे मुस्लिम खवातीन जो सीरियलों में इतने मसरूफ हो चुके हैं और फिर आकर कहते हैं कि जो सर स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं आप। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेना चाहता हूं मैं। एक पेरेंट है मेरे, महाना 50 से 60 हजार रुपए कमाते हैं उनके अपने बकौल। सब मेरा बच्चा देखो कब आए, एनुअल रिजल्ट मार्क्स बिल्कुल कम हो गए। मैं बोला कि इनका री एग्जाम कंडक्ट करेंगे तभी इनको जो आगे बढ़ाएंगे। तो आगे लड़ना शुरू कर दिए, बोले कि जो साहब मैं इतना मसरूफ रहता हूँ, सुबह 4 बजे रात को उठ के जाता हूँ, रात में 12-1 बजे आता हूँ। मैं इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इनका मुस्तकबिल संवारना चाहता हूँ। तो मैं एक ही सवाल करा, साहब आप अपने बच्चों को वक्त कब देते हैं? एक बाप के पास
अपनी कमाने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए इतनी जिसको जो है भागम दौड़ खून पसीना एक करके कमा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट नहीं निकालते हैं आप लोग कि मेरा बच्चा क्या पढ़ा, और साल खत्म होने के बाद में आगे बोल रहे हैं कि साहब मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। मैं कई बार कोशिश करा हवा में थाली बनाने की, बहुत कोशिश करा एक हाथ से, लेकिन नहीं बचती। थाली बजने के लिए 2 हाथों की जरूरत पड़ती। उसी तरह स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिलकर अगर कोऑपरेट करे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। ये माँ बाप की भी पूरी जिम्मेदारी है और स्कूल की भी पूरी जिम्मेदारी है। स्कूल एक तरफा जिम्मेदारी निभा रहा है और माँ बाप नहीं निभाएंगे तो ये मुश्किल है। खैर, बात करने के लिए काफी वक्त चाहिए, लेकिन तशरीफ फरमा, दायित्व तशरीफ फरमा लोगों को भी जो है बात करने का मौका देना चाहिए। अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Dignitaries on the dais and off the dais, Assalamu alaikum. Today, on this eve of the death anniversary of Dr. Zakir Hussain, former President of India, we gather here to pay homage to him. Though according to the occasion, some spoke about his personality and some even spoke on the same, but by taking the advantage of the today's gathering, I would like to speak on the regarding our young generation, so-called Muslim Mashara, Naujawan Muslim Tabqa. The current situation about our young generation is pitiable. Everywhere we find out the children belong to minority community. Sorry to say, not for the good cause. We can see double parent rides on the bike. We can see our young and the talented generation spoiling their time, their future, their career on chabutras. We can see them wandering during the odd times, late in the nights. Even parents are helpless to certain extent. But then who is the responsible for all this happening? And who is going to shoulder the responsibility to bring the change in these young boys? But the fact is basically our children bear in the born qualities. They are very energetic and talented, and they are using their talent in the wrong way. If they are channelized properly, if proper guidance is given, if moral values are inculcated, and if we give religious values, then they can be the better youngsters. Mobile phones are playing very drastic role here, and a part of the negligence comes towards us. So now, why don't we share our part of the responsibility, as the most of us sitting over here are the educationists. We are in schools, that means we are having the strong media of spreading message or conversing parents of children. So we need to focus more on the boys' education. We need to support them morally. The adverse effect of the less education in the boy is the lead cause of the stagnation in the girls' marriage. Nowadays, girls are gaining good education. They are attaining higher qualification, and to reach there the veterinary match, parents are seeking alliance who is more educated, more capable than their daughters, which are unfortunately we don't find in our community. So why don't we all start a mission, boys empowerment? Let us all unite and become a firm to give our boys good education, to support them morally, to help them to quit bad habits, to remove their addiction of the mobile late sleeps. Dear parents, instruct your children to sleep early. In fact, force them and make them to sleep early. Even don't allow them for the late night studies. Give your children the habit of getting up early. Teach them to offer all namaz. The recent example of the Nabil Ahmed, about which everybody is aware of it, a young, handsome child of the helpless parents, he passed away. May Allah keep his soul in rest and peace. But how about the parents, how they are suffering?
whose faults here? Parents, community, or society? So we all should take it a lesson, make it a burning example for all of us. We need to make our children bright and the future citizen of this country. We need to inculcate in them the feeling of the national integrity. We need to make them another Dr. Zakir Hussain. Let them have the feeling to feel like Indian. They should be taught that India is our country. We should serve our country. We should struggle here to establish ourselves. We feel proud by sending our children America, Australia, or Dubai, or England. Why we should serve other countries like slave or servant? No doubt we should visit whole world, but just as a guest, be proud to be an Indian. I request here to the Dr. Zakir Hussain Committee President, Mr. Sikandar Mashuki Sahab, to arrange counseling session for the boys to help them to overcome their weakness and helping them in choosing their career. Dear children, aim of big things and dream to achieve it. Be on the high position in the field of you choose. Learn to speak in English, learn to respect your teacher and elder, learn to be obedient to your parents. One more point I want to highlight here about Swachh. Basically, Islam teaches us to be neat and clean. That is, Paki Aada Iman hai. We all know the basic rule, so it is our prime and the basic duty to keep our surrounding clean. A committee can be formed in all the areas with motive to keep the area clean. As I already said, as schools we keep a bigger media, we can convert the message to the parents, to the people who are living in and around our locality, to keep our city clean, to keep our houses around the houses, our schools around the schools. Our students can help us in accomplishing the mission of the cleanness. We can teach our children the meaning of the Swachh or Paki or the neatness. The garbage everywhere is the richest source of the spreading disease. Here I request all the audience sitting over here to help the committee, Dr. Zakir Hussain, by donating the waste paper or the old newspaper or the scrap. It could waste for you, but it may help poor people. In this regard, you can contact Mr. Sikandar Mashuki Sahab. I request Mr. Sikandar Mashuki Sahab to collect the waste material from the school, from the houses, for the community good services. Thank you all for the patient hearing. Let us today determine ourselves to bring the revolution among ourselves is making our children better citizens, to keep ourselves is clean surroundings. Be Indian, feel Indian, proud to be Indian. I thank Allah for choosing me to do a good cause in the field of education. May Allah help us to do good deeds. May Allah help our children to be a good Muslim and a good Indian. Amin. Thank you very much. हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब अलहाज शेख महबूब शाहिद साहब, मैनेजर सिंडिकेट बैंक बहादुरपुरा ब्रांच से अदबन ख्वाहिश करता हूँ जो आपके यहाँ आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के, अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद हमारे रिक्वेस्ट पर आज यहाँ पर जो जलसे में चीफ गेस्ट की जिम्मेदारी कबूल किए हैं और इंशाल्लाह अपने दस्ते मुबारक से बच्चों को अवार्ड वगैरह भी देंगे, क्रॉसपोंडेंट्स को देंगे और मौजूदान शहर जो आए हैं उनको भी अपने दस्ते मुबारक से अवार्ड वगैरह देंगे। तो मैं साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को भी नसीहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डैश पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमान और मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, मेरी माँ बहनों, मैं बड़ी खुशी के साथ इस महफिल में शामिल हुआ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले
32 साल से इल्मी बेदारी के मामले पर हम बहुत काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी असना पर हमने टेक्नोलॉजीज भी बहुत से इस्तेमाल किए हैं अल्लाह के फज़ल करम से। तो उसमें फेसबुक पे भी हमारा एक बहुत बड़ा पेज है दीनी राह के नाम से, जिसमें 23 लाख लाइकर्स हैं उसमें। तो मैं बहादुरपुरा दिसंबर में यहाँ आया, उससे पहले मैंने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजों पर हमने एक बात को बार बार लिखा और कहा कि सब कुछ मुसलमानों के हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई स्कूल नहीं है, मुसलमानों की कोई हॉस्पिटल नहीं है, और मुसलमानों की कोई ऐसी चीजों पर हमने बहुत किया। लेकिन जब मैं बहादुरपुरा पे आया और चौरस्ते पर खड़ा होकर जब मैंने पहले अपनी निगाह डाला तो इस तरफ देखा तो स्कूल मौजूद, इस तरफ देखा तो स्कूल मौजूद, हर तरफ स्कूल ही स्कूल का मौजूद था। तो मेरा दिल खुशी से मचलने लगा और जिस चीज की मैं ढूंढ रहा था आखिर आखिरी चीज पर मैं वहां पर पहुंचा। और उसके बाद मैं मुख्तलिफ तरीकों से अपने करस्पॉन्डेंटों के साथ और उनके साथ मेरी बातचीत होती रही। जब भी इनको देखता था तो मेरा दिल अब पूरा ना समा जाता था और सोचने लगता था कि जिस चीज की मैं सोच रहा था आज यहाँ पर मौजूद आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद ही एक वाहिद शहर है, इसकी मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कलकत्ता भी जाना हुआ तो वहाँ के हालात को भी मैं 3 साल पर देखा और इतना गिरा हुआ माहौल था मुसलमानों की। वहाँ के हालात पर हमने देखा जब छुट्टियां आई तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तो हमने बच्चों के क्लासेस के लिए 2-3 दिन का एक समर कैंप हम खुद अपने तौर से किया। मतलब बहुत ही खस्ता हालतों पर था, लेकिन जब हम हैदराबाद आए यहाँ पर देखा गली गलियों पर स्कूलों पर और जब ये इस माहौल को देखा तो बड़ा खुशी का माहौल नजर आया। अल्लाह करे कि इसको और आगे बढ़ाए। अभी हम चाहते हैं कि कुछ सुझाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो मेरे कुछ सुझावें हैं जो हम अपने बच्चों को दें। और उसके साथ साथ करस्पॉन्डेंट्स यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये तो यहाँ आप लोगों के लिए मामूली से लगते हैं। जो आदमी पूरी घूम कर आया हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर आया हो, उसे पता चलेगा कि मुसलमानों के लिए जो इस्लामी जो स्कूल्स चला रहे हैं, जहां इस्लामी तालीमात हुआ करते हैं, और एक मुहिम पूरे हिंदुस्तान में जो चला वो यही था कि ये उर्दू को खत्म कर दिया जाए, उर्दू को किसी न किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। आपको मैं बता दूं कि एक बड़ी अजीब बात बता दूं कि जो मादरी जबान है पूरी दुनिया में कैसे ऐसे डायलेक्ट्स हैं जहां मादरी जबान बोलता है लेकिन उसे लिखने का नहीं आता। लेकिन उर्दू की एक खासियत यह है कि उर्दू अपनी एक नोयत रखती है कि जहां इस्लामी तहजीब की किताबें भी आपको मिलते हैं, इस्लाम की हर चीजें उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि उर्दू को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने इस्लामी उस जज्बात को जिंदा रखा, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है जितने लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत ही कम लोग हैं, इसके छोड़कर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जो लोगों की तालीमी मियार को बढ़ाया जाए, लोगों के अंदर तालीम की बेदारी किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ चल रहा है, इसके बावजूद भी और कुछ बाकी है। बाकी इतना ही नहीं है कि हमारा सिर्फ शहर को बनाए, बल्कि इसको एक एग्जाम्पल बनाए और पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर लोग इससे हासिल करें, सबक हासिल करें और अपनी जगहों पर, अपने माहौल में इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। इसमें कुछ चीजें मैं अपनी तौर से, वैसे तो मुबारकबाद है क्योंकि मैंने देखा कि सिकंदर माशूकी साहब पहली मुलाकात इनकी हुई तो उस वक्त भी मैंने देखा कि बड़े ही अच्छे अंदाज में, जिस अंदाज से वो बात करते हैं, जिस अंदाज से अपनी बात को रखते हैं, मुझे बड़ा दिल लुभाया। और जिस वक्त से उनकी बात को मैं ना कह सकता, हालांकि आज सैटरडे है, इसके बावजूद भी कई फोन आ रहे हैं, इसके बावजूद भी मैंने उनकी बात को लब्बैक कहा और मैं कुछ पैगामात देने के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आप उस चीजों को ध्यान से दें। इसमें बच्चों की तरफ भी है और दूसरी तरफ हमारे लोगों की तरफ भी है कि इस पे इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा।
میں نے ایک چیز کو محسوس کیا کہ میرا اس حال میں دوسری یہاں پر آنا ہوا. اس سے پہلے قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کیریئر گائیڈنس سیل ہے, ان لوگوں نے مجھے دعوت دیا تھا, تو میں وہ دیکھ کر ان کا نمبر نوٹ کیا, اور اس کے بعد سے کیونکہ ہم سینٹر آف اٹریکشن وہاں رہتے ہیں, لوگ رہتے ہیں اور مختلف لوگ ہم سے آ کے معلوم کرتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, تو ان سے ہم یہ بات کرتے مطالبہ کرتے رہتے ہیں, تو بچے بہت سے آتے ہیں ہمارے پاس, میرے کیبن میں آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا کرنا ہے, وہ کیا کرنا ہے. تو مجھے اگر کیریئر گائیڈنس کے سلسلے میں مجھے بہت سے کام کرتے ہوں گے, لیکن میرے پاس تو بہت کم ہی, جتنا ایجوکیشن فیلڈ میں ہو رہا ہے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر گائیڈنس میں نہیں ہو رہا ہے. اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اس میں اور تھوڑا محنت لگائیں. جو محنت آپ کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا تو دنیاوی اجر ہی ہے, اس کے ساتھ اخروی اجر بھی آپ پا رہے ہیں. اسلام کی فروتنی کے لیے, اسلام کی فروغ کے لیے اور آپ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک سجھاؤ آپ کرسپونڈنٹوں سے ہے کہ آپ کیریئر گائیڈنس سیل میں بھی کچھ محنتیں کریں اور اس میں دیکھیں کہ بچے ہمارے کون سا کس طرف جائیں, کیونکہ آج قوم کی پتھر حالت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, قوم کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے. اگر جانا بھی چاہتا ہے تو اسے پتا نہیں ہے کہ کون سے راستے پہ جاؤں, رائٹ جاؤں, لیفٹ جاؤں, سامنے جاؤں, پیچھے جاؤں, کچھ نہیں ہے. یہ ہماری المیہ بن چکی ہے کہ ہمارا کوئی راستہ نہیں بن رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ایک دو جیسے ہمارے کسٹمز آفیسر ہیں, یہاں جتنے بیٹھے ہیں, یہ پورے کریم آف دی سوسائٹی ہیں جو یہاں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, ان کو معمولی مت سمجھنا. میں آپ سے, بچوں سے, آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ان کو دیکھ کر آپ ایمولیٹ کرنا ہوگا, آپ کو بننا ہوگا کہ مجھے بھی ایک گول بنانا ہوگا, مجھے اپنی محنتیں کرنا ہوگا. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. آپ اپنی محنتیں کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں. آپ دیکھیں کہ قوم دنیا پوری اسلام کے خلاف ہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے, لیکن اسلام کے اندر وہ لچک موجود ہے. جتنا دبانا چاہو گے اتنا اچھلتا ہوا نظر آئے گا. یہ اسلام کی خاصیت ہے. لوگ جانتے ہیں پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں دبانے کی. اس میں ہمیں کوئی لینا نہیں ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور وہ بھی انہی کرسپونڈنٹوں کی طرف سے ہے, جیسے ہمارے کسٹم صاحب حضرت نے بتایا, میں بھی اس کو فیس کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کا جو نظام ہے وہ گرا ہوا ہے, اتنا گرا ہوا ہے کہ زبان سے جب بات کرتے ہیں تو گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ کس لیے کہ پڑھا تو بہت اچھا ہے لیکن اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا, اپنے آقا کو اتنی بڑی رفعت عطا فرمایا, اس کے باوجود بھی اخلاق سب کچھ بنایا گیا. اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے, لیکن اس کا ہمارے اندر علم تو ہے لیکن اخلاق کی کمی ہے. اس لیے میں خاص کر کے کرسپونڈنٹوں سے میری ادباً گزارش ہے, کرتے ہوں گے, میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں کرتے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے اخلاقی پیرائے پر ایک ایسا کلاس رکھے جہاں بچوں کو دینی اخلاقی باتوں کو ضرور سمجھائے, تاکہ وہ جب باہر جائیں اپنی زبان کو کھولے تو ایسا محسوس ہو کہ صحیح مسلمان بات کر رہا ہے, کیونکہ ہمارا ماحول اس طرح بن چکا ہے. یہ دو چیزیں سجاوے میں آپ کی طرف لگا رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کرتے ہوں گے, کرتے ہیں تو الحمدللہ. اور مجھ سے بھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کیریئر گائیڈنس سیل ہے تو آپ اس کو مجھے بتا دیجئے, تاکہ میرے ساتھ بہت سی بچیاں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, اندر آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہولیے میں دیکھتے ہیں تو لوگ خوشی کے ساتھ اندر آتے ہیں. میں انہیں بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتا ہوں, بات کرتا ہوں, اور ان کے ساتھ جتنی چیزیں چاہیے وہ تمام چیزوں کو جو مجھے چاہیے اس کو ہم فراہم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اخلاقی نظام کو برقرار رکھا جائے, ہم کو اپنے آپ کو اخلاق کے پیرائے بنایا جائے. میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معشوقی صاحب بات کرتے ہیں, ایک اور بہت سی کام شخصیت یہاں بیٹھے ہیں, شاکر صاحب, جن کی گفتگو آپ نے اگر سنا ہوگا, ان کی اگر گفتگو کرتے ہیں اتنی نرمی کے ساتھ, جب وہ بات کرتے ہیں تو دل لبھا لیتے ہیں. یہی اسلام کا پیرایا ہے جس کو آپ کو سیکھنا ہوگا اور اس میں اپنی زبان کو اچھی طرح سے اور بہترین انداز سے سیکھنے کا ایک نظام پیدا کرنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب چلے جائیں, اگر آپ زبان سے گندگی بات کریں گے, آپ گالیاں گلوچ استعمال کریں گے, تو سوچنے والا مسلمان نہیں کہے گا, بلکہ آپ کو نہیں گالی دے گا, بلکہ کہے گا کہ مسلمان اس طرح کا ہے. آپ جب بھی کبھی بات کریں, جب کبھی بھی اپنی زبان کو کھولے, اس خیال رکھے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. اگر میں کچھ بول دوں تو
ये मुझ पर नहीं बल्कि मैं जिस मजहब का चाहने वाला हूँ उस मजहब पर एक दाग बन जाएगा। इसका ख्याल बच्चों को करनी चाहिए और अपने आप को इन चीजों से बनाना चाहिए और अपनी जिंदगी को इस तरह से ढालना चाहिए। और अपने माँ बाप की, जैसे हजरत ने कहा, ये सही है कि आप हमारे बच्चों को, इंसानों को इतना वक्त कमाने में इतना लग गया है कि उन्हें एहसास नहीं है कि बच्चा कौन है। ये जितना काम कर रहे हैं बच्चे आपके हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेकर कर रहे हैं, इतना तो उन माँ बाप को सोचना होगा, माँ बाप को ये देखना होगा। और उन्हें एहसास नहीं है, बच्चा जो पूछ रहा है उसको दिया जा रहा है, बच्ची जो पूछ रही है दिया जा रहा है। याद रखे मोबाइल का, जैसे अभी एक हजरत ने बताया कि मोबाइल एक डिस्ट्रक्शन बना हुआ है, हमारी जिंदगियों के लिए एक बर्बादी का एक सामान बना हुआ है, मुख्तलिफ, खास करके लड़कियों के लिए। उनको अपने आप को लड़कियों के अंदर इस बात का ख्याल रखे, उनको दीनी तालीम से इतना आरास्ता करें, उनको दीनी तालीम से ईमान की असलियत को उनके दिलों में इतना घुट्टी डालकर दबा दे कि वो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ईमान नहीं है। क्योंकि एक मुहिम चलाया जा रहा है कि मुसलमान बच्चियों को अपने दूसरी तरफ ले जाने, उनके ईमान को खींचने का काम किया जा रहा है। इसके लिए बच्चे, माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों में वो तालीमी बेदारी पैदा करें, ईमान की असलियत को उनके दिलों में डालें ताकि वो अपने आप को सही बनकर जिंदगी बना सके। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं लड़कों लड़कियों से मुखातिब होकर अभी चंद बातें करने वाला हूँ, उसको आप गौर से समाप्त फरमाएं और ये देख ले और इसको पल्लो बन ले और अपने आप को बना ले। और दोनों के लिए मेरी ये है कि सबसे पहले आप अपनी जिंदगी को अपने अंदर ये बात को लगा ले कि मैं कुछ भी खो दूंगा, मेरा घर चला जाए, पूरा जायदाद चला जाए या मेरी जिंदगी चले जाए, कुछ बात नहीं है, लेकिन मैं अपना ईमान को नहीं बेचने वाला हूँ। ये सबसे बड़ी बात है जो अपने आप को, इस बेसिक को आपके दिलों में बिठाना होगा। अगर कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो जाए, जिस तरह से दूध माँ के थनों से जब निकलता है वापस जिस तरह नहीं आता, उस तरह से मैं भी अपने ईमान का सौदा किसी चीज के लिए नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ये सबसे पहला सबक आप अपने दिलों में बिठाना होगा, अपने दिलों में बनाना होगा। यही अपनी जिंदगी है। और इस्लाम के मानने वालों हो, और इस्लाम आपको नेकी और बदी का जो है उसका एक ग्राफ बताता है, और अपनी जिंदगी को नेकी में ढालना होगा, बुराइयों से बचना होगा। ये दोनों चीजें अपने अंदर हैं। दुनिया बुराई की तरफ बुलाती है और अपने आप को नेकी की तरफ लाना होगा, बुराइयों से बचना होगा। और इसके लिए तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है नमाज का रास्ता है। जैसे अभी आपने सुना कि 12 बजे तक बच्चे हैं, और बच्चों का मामला नहीं है, बल्कि मैंने 2 सिटीज में काम किया है। मैंने अपनी 32 सालों में तकरीबन 25 या 26 साल अपने बच्चों को कुरान सिखाने का सुबह के बाद किया है, लेकिन 5 साल से हमने ये काम नहीं किया। आपको पता है क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हूँ। कलकत्ते में था तो लोग 12-1 बजे तक जागते हैं। मैं एक ही नहीं बल्कि उलमा का भी ये आलम है कि रात 12 बजे 1 बजे तक जागते हैं और फजर के लिए कोई हासिल नहीं देता। और वहां जब फजर के लिए नहीं उठता है तो बच्चों को क्या खाप उठाएगा और बच्चों को क्या पढ़ाएगा? इसलिए बच्चों को असर को वक्त यहाँ लगाया गया है और हमें वक्त, असर का वक्त नहीं मिलता, तो इसलिए इस काम में नहीं लगाया गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा एक मिजाज बन चुका है रातों को देर से सोना और फजर को गायब कर देना। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। याद रखो, जब तक कि आप इस्लाम के साथ जुड़े रहोगे तो इस्लाम तुम्हें इज्जत देगा, इस्लाम तुम्हें तमाम तर चीजों से बनाएगा। तुम अगर इंजीनियर भी बन जाओगे, अगर मुसलमान हो तो खैर आपको ये दोनों चीजें आपके साथ रहेंगे। अगर आप इस्लाम के साथ नहीं है, आप इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन मुसलमान अगर नहीं है, इस्लाम की चीजों से अगर नहीं है, तो तुम्हारा मुसलमान डॉक्टर बनना या और करना यदि आपको लिए कोई फायदा बख्श नहीं होगा। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह याद रख ले, अपने आप को बनाए, अखलाक का निजाम पैदा करें। बात करें तो नरमी के साथ बात करें, किसी से गुफ्तगू करें तो नरमी के साथ गुफ्तगू करें, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला नरम लोगों को पसंद करता है। और अपने आप को इन चीजों से बंद कर रहे और अपनी जिंदगी को एक नेक वाबस्तगी के साथ बनाए, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। अगर आपका कोई दोस्त गलत रास्ते पर है तो उसकी दोस्ती छोड़ दे, अल्लाह के लिए दोस्ती छोड़ दे, क्योंकि दोस्त ही वो होता है जो अपने आप को उसे नेकी या बुराई की तरफ ले जाता है। कुरान पाक भी इसकी शाहिद है, अल्लाह ताला का भी फरमान है, वो कुलू मा सादिकीन फरमाया, सच्चों के साथ सोहबत इख्तियार करने का हुक्म फरमाया गया है। हम तमाम इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है,
یہ کوئی ایسا مذہبی لیکچر نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بلکہ دونوں چیزوں کو ملا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور قابل مبارکباد ہے یہ فاؤنڈیشن والے جنہوں نے آپ کو یہاں بنانے کا معاملہ کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی جگہوں پر جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں مسلمان بچے اگر فرسٹ کلاس آتے ہیں، فرسٹ میں آتے ہیں تو انہیں پڑھنے والا نہیں تھا، تو ہم نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر جو فرسٹ ہوتے ہیں، سیکنڈ ہوتے ہیں، تھرڈ ہوتے ہیں، مسلم کینڈیڈیٹس میں جو ہوتے ہیں ان کو ایوارڈ دینے کا ہم ہر گاؤں میں ایسا کیا ہے الحمدللہ، کیونکہ وہاں پر بیداری نہیں ہے۔ لیکن آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کی جو باتیں ہیں اس کو پہچانتے ہیں اور آپ کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ایوارڈ ہے، لیکن یاد رکھنا اس کو اپنے ساتھ لینا، اپنی زندگی کو ایک گول بنانے کے لیے اپنے لیے ایک گول ضرور تیار کرنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے جس سے کہ میں خود صحیح بہی بن جاؤں اور میں کسی اور کے بھی کام آ جاؤں، کسی مسلمان بھائی کے کام آ جاؤں۔ یہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی و کامیابی ہوگی۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سکندر معشوقی صاحب کا اور مختلف حضرات کا جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بولنے میں اور اس بولنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا کل بنی آدم، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو میرا سلام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک امت مسلمان کو ڈیولپمنٹ کے لیے، ایک امت مسلمان کو رہبری کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر موجود کیے جمع ہوئے ہیں۔ میں تمام یہاں پہ کرسپونڈنٹس اور آرگنائزیشنز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کے لیے یہاں پر ہم لوگ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وشر وما قضيت إنك لا تقضي ولا يقضى عليك اللهم علما نافعا اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا ديان يا قاضي الحاجات اغضي حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلاءنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا حل المشكلات سيل أشكالنا يا رب العالمين اللهم المجاهدين مسجد الأقصى وفلسطين اللهم المجاهدين مسجد الأقصى وفلسطين وتحرير المسجد الأقصى وفلسطين وتحرير المسجد الأقصى وفلسطين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله أكبر وكبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم اجعلني في قلبي نورا واجعلني في بصري نورا اللهم آتيني نورا اے اللہ ہم کو آپ کا نور عطا فرما
या अल्लाह हमारे कब्र में नूर अता फरमा, या अल्लाह हमारे जिस्म पे और हमारे चेहरे पे आपका नूर अता फरमा, तू हमारे को नूर अता फरमा। या अल्लाह तू कुन फयकुन की शान रखने वाला है मेरे मालिक, हम तमाम के मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमा और खैर का मामला अता फरमा, स्कूलों में बरकत का मामला अता फरमा, आसानी का मामला अता फरमा, रहमत का मामला अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों पे रहमतों की बारिश अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसीबत परेशानियों से दूर अता फरमा, हमको दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। या अल्लाह दोनों जहान की दौलत से हमें मालामाल अता फरमा। या अल्लाह इस दुनिया से जो रुखसत हो चुके हैं हमारे मौला, उनकी सबकी मग़फ़िरत अता फरमा, उनको जन्नत वाजिब अता फरमा, दोज़ख उन पे हराम कर दे मेरे मौला। या अल्लाह जो भी इस दुनिया में परेशानियों को दूर फरमा, और ख़ास तौर पे स्कूल में एडमिशन्स के बारे में करस्पॉन्डेंट्स परेशान है मेरे मौला, तमाम करस्पॉन्डेंट के परेशानियों को दूर अता फरमा, उनके परेशानियों को दूर अता फरमा, उनके लिए आसानी का मामला अता फरमा। और जो गवर्नमेंट से जो परेशानियाँ आ रही हैं मेरे मौला, वो परेशानियों का उसका भी मसला हल क्यों करने वाला है मेरे मौला, तो ये तमाम मसलों को हल को दूर फरमा दे मेरे मौला। हर एक के दिली मकासद जायज़ मकासद को पूरा फरमा। जो भी दुआ मांग रहे हैं मेरे मौला, उनके दुआओं को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ील में कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे को जिब्राइल का वास्ता, मीकाईल और इसराफील का वास्ता मेरे मौला, ये जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील के प्यारे परवरदिगार आलम, इन सब तमाम फरिश्तों के प्यारे रब, हम तमाम उम्मत मुसलमान को फतेह, नुसरत और कामयाबी नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह हम पे जन्नत वाजिब अता फरमा, दोज़ख हम पे हराम कर दे मेरे मौला। या अल्लाह दोज़ख हम पे हराम कर दे मेरे मौला। पुल सिरात का रास्ता हमारे लिए आसान अता फरमा। हमको जो आज नौजवान बच्चे जो परेशानी यहाँ पे तकारीब में बोले गए हैं, और जो जाहिलियत, अखलाकियत और चबूतरों पे बैठना है, या अल्लाह हमको कुरान से जोड़ दे मेरे मौला। या अल्लाह कुरान हमारी जिंदगी बन जाए मेरे मौला। हम तमाम करस्पॉन्डेंट से गुजारिश है कि मेरे मौला कि हम सब जने मिलकर स्कूलों में कुरान की तालीम को देने वाले पर बंदे बन जाए मेरे मौला। क्योंकि आपका कहना है कि अलीफ पढ़ने से 10 नेकी, लाम पढ़ने से 10 नेकी, मीम पढ़ने से 10 नेकी, तो अलीफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकी मिलती है। खास तौर पर हम इसके ऊपर मेहनत करने वाले बन जाए मेरे मौला। या अल्लाह हमको कुरान को पढ़ाने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। في فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Galaxy Hospital